बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह सां जे बाधारे नाले सां जेको असांजी सोच खां वधीक असां ते महिरबान आहे, असां ते रहम कंदड़ आहे, असां ते करम कंदड़ आहे, असां ते बाझ कंदड़ आहे। बाझ भी एक लफ्ज है जो वर्ड ऑफ द डे में हम पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, जो रहम की जगह पर इस्तेमाल होता है और एक ऐसा इनोसेंट और प्योर लफ्ज है, निज लफ्ज है कि जो मुझे किसी और जुबान में नहीं मिलता। वैसे ये रहम के लिए ही इस्तेमाल होता है, साइनोनिम ऑफ रहम है। अल्लाह तबारक ताला के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो हम सबके दिलों की नीयतों को जानता है। अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा एंड वेलकम टू क्लास नंबर 33 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, which is being initiated to disseminate the knowledge, the basic knowledge about Sindhi language to those who want to learn it as their second language, or who are speaking it, using it as their mother tongue, as their first language, but they want to excel, especially in the basics of this language. इलाही दफ़ा ईअं थींदो आहे त असां पंहिंजी मादरी ॿोलीअ खे लाइट वठंदा आहियूं, असां सम्झंदा आहियूं त असांखे अचे थी, पर खोड़ सारियूं बेसिक्स असांखे ख़बर न आहिनि हूंदियूं। त स्पेशली व्हेन यू आर टीचिंग सिंधी लैंग्वेज, त उन्हनि जी बेसिक्स सिखण जे लाइ बि असांजा खोड़ सारा अहिड़ा दोस्त पिया आहिनि जिन जी मादरी ॿोली सिंधी आहे, पर उहे हिन कोर्स खे सिखनि था पिया। दिस इज 5:04 p.m. in Pakistan, 5:34 p.m. in India, 3:04 p.m. in United Arab Emirates. This is 3:04 p.m. in 4:04 p.m. in United Arab Emirates, 3:04 p.m. in Hijaz al-Muqaddas in Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:04 p.m. in London and rest of the parts of United Kingdom. And this is 7:04 a.m. in the morning in the east coast of United States of America. This is 9:04 p.m. in Tokyo. In Japan, this is 11:04 p.m. in Australia, and 1:04 a.m. in the next date in New Zealand. So, good evening to all those who are joining us from most of the parts of Asia, including South Asia and Middle East, Far East, and most of the parts of the Central Asia, kuch parts ke chale kare, Russia, kuch parts ke chale kare. Those who are joining us from America, a very early good morning to those, and those who are joining us from Europe and United Kingdom, late good morning or an early good afternoon to all of those. So welcome to this class, and let's jump to slide number 1 of our class. And this starts with stating that which is the darsagah, which is the alma mater who is going to teach you this course, and that is Sindhi Boli Jawab Tayar Idaro, Sindhi Language Authority, which is written on the top. In English, written on the top, Sindhi Language Authority, Hyderabad, Sindhi Boli Jawab Tayar Idaro, Hyderabad. This is Sindhi Language Learning Course online, Sindhi Boli Sikhya course online, and you are the first batch of Sindhi Language Learning course. And this is class number what? Who will tell me? Which class is this? How will we read this in Sindhi? Who is there to participate? Who is there to start the participation of this class and read this? That what is this written? 33. How will we pronounce 33 in Sindhi? How will we pronounce 33 in Sindhi? Anybody? You can raise your hand and you can show your interest in reading this number. Class number 33 in Sindhi. Who will read it? Who is going to read it? Asif Iqbal Saab, are you interested to read this? Asif Iqbal Saab. Roll number 17 is roll number 17. Are you interested to read it? May be wrong. Not necessarily you may share it. It's appropriate pronunciation. लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं. Roll number 3. TR number 3. Can you try? TR number 3. TR number 3. Mohammed Imran Zakri साहब आप बताएं. जी, TR number 3 is there. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम सर. जी बताइए, पढ़िए इसको. TR number 3. Hold on please. Yes sir. क्या अल्हम्दुलिल्लाह सर, ता किवें आयो? कीमे क्या होता है? तबीयत कीमे क्या होता है? कीमे आप जब सराइकी से निकलेंगे तो और किसी कोई जुबान सीख सकेंगे ना. हाउ टू कम आउट ऑफ इट.
then you will be able to learn Urdu or मैं Punjabi or Sindhi मैं or निकल रहा हूँ सर, मैं पढ़ता भी रहता हूँ, बस ये जबान में जो मैं समझता 100% हूँ सर, ही सर हर लफ्ज हिंदी के। तो समझना तो एक लेकिन एक स्पीकिंग नहीं अभी मैं सर। यूनिवर्सिटी का लाऊंगा इंशाल्लाह। सर ओ सर ओ मेरा साईं, सर जो समझना है वो जो लैंग्वेज स्किल्स है उनमें से एक है। आपको बाकी तीन पर भी महारत हासिल करनी है, सिर्फ एक को आप सर्व करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न लैंग्वेज। व्हाट इज दिस रिटन सर? 33, हाउ विल वी से 33 इन सिंधी? हरी अप कम ऑन। इसको 33 इसको टेंट्री बोलते हैं सर, टेंट्री। टेंट्री। टेंट्री, अच्छा, थैंक यू टेंट्री। वेरी मच। थैंक यू। दोनों आपने अलग अलग बताया, एक पर कायम रहे। टेंट्री कह रहे हैं, फिर टेंट्री कह रहे हैं, फिर डेंट्री कह रहे हैं, फिर डेंटिस्ट्री कह रहे हैं। एक कहिए, किसी एक पर कायम रहिए कि भाई ये फाइनल है, इसको लॉक करें। हरी अप सर, हरी अप, आई डोंट सर हैव टाइम। टेंट्री, टेंट्री। टेंट्री इज रॉन्ग सर। रोल नंबर 3, कैन यू प्लीज हेल्प मी? रोल नंबर 3, कैन यू प्लीज हेल्प मी? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम मैम। सर तव्हां कीअं आहियो? मां ठीक है शादी सराज साहब, तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां सर। तबियत से तव्हांजी कीअं अ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, अल्लाह का सदाई ठीक हो जो। सर इसे इसे ट्रेटरी कहेंगे आई थिंक। ट्रेड ट्री है, ट्रेड ट्री है जी। जो ट्रेटरी हाँ। ट्रेड ट्री है, क्योंकि आखिरी हर्फ पर जो है ना ट्रेड ट्री करके छोड़ नहीं देंगे, ट्रेड ट्री है। असल में ट्री है कहते हैं 30 को, ट्री है इज 30। टे ये हे पर जबर, ठीक है। टे और ये जेर के साथ मिले हुए ट्री, और हे पर जबर है, टी है। अब उसके साथ एक ट्री है, बट्री है, ट्रेट्री है, चोट्री है, पंट्री है, छट्री है, सत्री है, 31, 32, 33, 34, 30। तो सिंस दिस इज 33, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज ट्रेड ट्री है। यानी ट्री है इज, ट्री है माइंड में रखें, ट्री है इज 30। अब उसमें एक ट्री है यानी 31, बट ट्री है 32। ट्रे ट्री है, यानी ट्रे अलग है, ट्री अलग है, फिर उसको मिला के पढ़ेंगे ट्रे ट्री है। सेट ये सर ट्रेटरी हाँ। ट्रे अब ट्री है। अब ठीक है। हाँ सही है, लेकिन हा को ज्यादा ना खींचे, उसमें सिर्फ टच दें उसका जबर का, ट्रेट्री है। क्योंकि हा जो है वो अलिफ का जो है साउंड देता है। ट्रेट्री है, ट्रेट्री है, सिर्फ उसको टच कीजिए। ठीक है, टच ट्रेटरी करके हाँ। वापस आना जी। ट्रेट्री है, तो इसी तरह से कर लोगी, चोट्री है, पंट्री है, छट्री है, सतट्री है, अठट्री है, उनताली है, फिर चाली है। फिर उसमें भी इकताली है, बाईताली है, त्रेताली, चौताली, पंजेताली, छयताली, सब इस तरह से ऑनवर्ड्स। बहरहाल अच्छी कोशिश, थैंक यू सो मच शादी साहबा। ओके So, सर, थैंक यू। welcome. So, who will read the date and day for me? This is Thursday, February 15th, 2024. Who is going to read this for me? Eileen Saiva, would you help me reading this? Thursday, February 15th, 2024. Who will read this for me? Eileen Saiva? Faiza Saiva, would you help me reading this? If by hold the class not there, but majority is there. Hamza Sahib is going to read it. Hamza Sahib, Muhammad Hamza Sahib. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कीअं आहियो? सर मां ठीकु आहियां सर, तव्हां ॿुधायो कीअं अल्लाह आहियो? जो शुक्र है सर, अल्लाह जो शुक्र है, अल्लाह का सदाई ठीक रहो। हमजा साहब ने पढ़ी ॿुधायो छा लिखियल आहे? सर ख़मीस 15 फरवरी 2024 ईस्वी। जबरदस्त। अब खमीस को खमीस बोलते हैं, क्योंकि वो जो इनफरादियत है सिंधी जुबान की कि आखिरी हर्फ पर कोई ना कोई हरकत आती है, तो खमीस उसको खमीस। खमीस 15 फरवरी 2024। रीड इट सर, रीड इट अगेन सर। खमीस 15 फरवरी 2024 ईस्वी। ईस्वी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान अहमद साहब, कैन यू रीड इट प्लीज? रीड इट जीशान अहमद साहब। जी सर। जी जीशान साहब कीअं आहियो? तव्हांजी तबियत कीअं आहे? मां ठीकु आहियां। माशाल्लाह। जी जीशान साहब पढ़ो इनखे। खमीस 15 फरवरी 2024। कौन प्रॉम्प्ट कर रहा है आपको? उनका नाम बता दीजिए, अगर वो आपसे ज्यादा काबिल है तो उनसे बात कर लेते हैं। नाम बता दीजिए कौन प्रॉम्प्ट कर रहा है? नहीं सर, वो भाई था, एक चीज बताई थी इसकी।
एक या दो नाम बता दे उनका, उनका नाम बता दीजिए, उसमें गिरामी बता दीजिए, हमारा तारुफ हो जाए उनसे। क्या नाम है उनका? फैजान। फैजान। फैजान खुद भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो वो बता देते। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आई विल एनकरेज इफ समबडी डजंट प्रॉम्प्ट यू, राइट? आप गलत बताएं, कोई मसला नहीं है, गलत बताने में प्रॉब्लम थोड़ी है, गलत बताने से ही तो करेक्शन होती है। सो से इट एज व्हाट, मतलब बी यू, इंग्लिश में कहते हैं बी यू, whatever you know, just disseminate it. रबिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रबिया साहबा, क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तमा किया आयो सर? मां भी ठीक है, मां भी सुठो आया। आपने पूछा था ना सुठो और सुठी में फर्क? नो सर। वो किसने पूछा था? आयशा खान ने पूछा था शायद, कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैं मां सुठिया हैं या मां सुठो हैं, शायद उन्होंने पूछा था या आपने पूछा था। बहरहाल अल्लाह कितना ठीक हो जो, तव्हां पढ़ी ॿुधाई दो ये छा लिखियल आहे जेको रेड इंक में लिखियल आहे? यस सर। जी। खमीसा 15वीं फरवरी 15वीं नहीं, 2000 ये होगा 15वीं। 15 15वीं। 15 हाँ। फरवरी 2024 ईस्वी। ईस्वी। अब ये जो 15वीं आपने बोला ना, उसमें वाव की जगह पर हे लगा दी। 15वीं, 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 ठीक है? 15वीं की जगह पर 15वीं बोलिए, दोबारा बोलिए। 15 नॉट 15वीं, 15 15वीं, 15वीं। जी। 15 हम्म। फरवरी 2024 ईस्वी। शाबाश, शाबाश, थैंक यू। खमीस 15 फरवरी 2024 ईस्वी, and this is class number 33, and thank you so much Rabia Sahaba, Zishan Ahmed Sahab, Mohammad Hamza Sahab, and also Faizan Sahab who was prompting, Shadi Asraj Sahaba, Mohammad Ibrahim Zakriya Sahab। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से बाजार एनालिसिस शुरू करूं था, उन शुरू करने जे सिलसिले में असां हमेशा मदद वठंदा आहियूं। We get the help of the lines said by, composed by Shah Abdul Latif Bhitai, the greatest poet of the language you are learning, the greatest poet of Sindhi, the poetry of Shah Abdul Latif Bhitai. The very first verse from his very first chapter of his poetry collection, which is called Shah Jo Risalo, the Risalo of Shah Latif. Aval Allah Alim, Ala, Alam Jo Dhani, Qadir Panji Qudrat Si, Qaim Ahe Qadim, Wali, Wahid, Wadu, Raziq, Rabb Rahim, सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ों जोड़ जहान जी। यानी वो खुद ही जानता है इस बात की हिकमत कि उसने हर चीज जोड़े से क्यों पैदा की है। और आप वाकई देखें तो कायनात में हर चीज जोड़े में पैदा हुई है। हर चीज जो है वो जोड़े की सूरत में है, लेकिन हर मखलूक में कोई ना कोई एक पॉपुलर जेंडर होता है। ये याद रखिएगा। ये क्यों बता रहा हूं, ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि जब आप कैट का जिक्र करते हैं तो उसमें आप बिल्ला बाद में कहेंगे, पहले बिल्ली कहेंगे, क्योंकि उसमें पॉपुलर जेंडर जो है वो फीमेल है। घोड़े का जिक्र करेंगे तो घोड़ा पहले कहेंगे, घोड़ी बाद में कहेंगे। चिड़िया का जिक्र करेंगे तो चिड़िया पहले कहेंगे, चिड़ा बाद में कहेंगे। यानी पॉपुलर जेंडर हर परिंदे, हर जानवर और हर इंसेक्ट में एक पॉपुलर जेंडर है। ये आप कभी गौर कीजिएगा, पॉपुलर जेंडर होता है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि डॉग की शक्ल अगर बनाई जाए तो आप बिच नहीं कहेंगे उसको, या पपी नहीं कहेंगे, आप डायरेक्ट कहेंगे इट्स डॉग। जब कैट बनाई जाए तो विदाउट नोइंग द जेंडर, मैं सिर्फ कैट का मुंह ही दिखाऊं तो आप कहेंगे बिल्ली है, आप ये नहीं कहेंगे बिल्ला है। यानी उसका पॉपुलर जेंडर जो है फीमेल है, फेमिनाइन है। घोड़े में पॉपुलर जेंडर जो है वो मैस्कुलाइन है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है, बंदर में पॉपुलर जेंडर जो है वो बंदर है। तो जैसे भैंस है, भैंस में पॉपुलर जेंडर फीमेल है, फेमिनाइन है, भैंसा आप बाद में कहेंगे। गाय में, गाय पॉपुलर जेंडर है, जो बैल है वो अनपॉपुलर जेंडर है। ऐसा नहीं कि उसकी आदमशुमारी, आदमशुमारी तो नहीं कहेंगे, जानवर शुमारी कम है, लेकिन पॉपुलर जेंडर्स जो है वो कुछ मशहूर हैं। ऐसा ही आज एक वर्ड ऑफ द डे हम करेंगे जिसमें पॉपुलर जेंडर उर्दू में कुछ और है, सिंधी में कुछ और है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया जोड़ों जोड़ जहान जी से। तो आज का लफ्ज पढ़ने से पहले मुझे कोई बताएगा कि कल का लफ्ज हमने क्या पढ़ा था, लेकिन मुझे जल्दी कोई बताए प्रॉम्प्टली तो ठीक है, वरना वी ड्रैग इट। क्योंकि ये होता है कि मेरी आवाज 7 सेकंड बाद आपको पहुंच रही होती है। तो आई विल काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी प्रॉम्प्ट, और जल्दी जल्दी में कट टू कट आप मुझे बताते चलें कि वर्ड ऑफ द डे क्या था। आयशा खान साहब, वुड यू बी काइंड इनफ टू शेयर विथ मी व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे यस्टरडे?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा खान, तव्हां कीअं आहियो? सर मां सुठी आहियां, तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुल ठीक है। वो आपने कहा था ना सुठो और सुठी वाला, आपने पूछा था गालिबन, है ना? जी जी, सर। मैं मुझे मेरे ध्यान में मैं रबिया साहब से पूछ रहा था। जी आयशा खान साहिबा, क्या था वर्ड ऑफ द डे यस्टरडे? घुर्बल, घुरबल। व्हाट इज घुरबल? मकसूद या मतलूब, रिक्वायर्ड। अगर मैं कहूँ मुझे मुझे घुरबल मवाद खपे, तो व्हाट डज इट मीन? हाँ, मुझे ये चाहिए, मतलब ये वाली चीज मुझे चाहिए। मवाद मीन्स मटीरियल, ये राइट? मकसूद है। मकसूद है। मवाद मीन्स मटीरियल। अगर मैं कहूँ कि मुझे पीएचडी की डिग्री मकसूद है, पीएचडी की डिग्री घुरबल आहे, अगर मैं सिंधी में कहूँ कि मुझे पीएचडी की डिग्री घुरबल आहे, तो इट मीन्स व्हाट डज इट मीन? मुझे पीएचडी की डिग्री जो है वो मकसूद है या मतलूब है। या दरकार है। सही है, यानी मैं आई एम अर्जिंग फॉर इट, आई एम ऑप्टिंग टू अर्ज जी, फॉर इट, राइट? थैंक यू वेरी मच आयशा खान साहिबा। थैंक यू। तो आज का लफ्ज है एक जानदार, एक इंसेक्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ इतना प्यारा इंसेक्ट, इतना खूबसूरत इंसेक्ट से तस्वर जो जहन में आता है वो आता है कीड़े मकोड़े ऐसे कि जिनको देखकर कोफ्त हो आपको। लेकिन इतना प्यारा जो कीड़ा है, इतना प्यारा इंसेक्ट है कि जिसको पकड़ने को हर किसी का दिल चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसका पॉपुलर जेंडर उर्दू में फेमिनाइन है, सिंधी में मैस्कुलाइन है। ये कम ऐसी मिसालें मिलती हैं। कैन यू गेस, कैन एनीबॉडी गेस? एक ऐसा इंसेक्ट जो बड़ा खूबसूरत है, प्यारा है, आपको नजर आ जाए तो आप उससे दूर नहीं भागते, बल्कि वो आपसे दूर भागता है, आप उसको पकड़ने के लिए यू ऑप्ट फॉर इट। एनीबॉडी, कैन एनीबॉडी गेस? जी आयशा तारिक साहब। It might be titli, butterfly. ओके, तो तितली को कुछ है आइडिया कि सिंधी में क्या कहते हैं? कहते होंगे। No, sir. नो आइडिया। चले, थैंक यू, योर गेस इज करेक्ट। तितली, बटरफ्लाई, यानी कुछ खूबसूरत इंसेक्ट्स हैं कि जिनमें बटरफ्लाई भी एक है। और ये एक ऐसा कीड़ा है कि जिसको आप मारते नहीं, स्प्रे नहीं करते उसको मारने के लिए, जहां नजर आ जाए आप पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, उसमें कुछ और भी हैं इंसेक्ट्स जो प्यारे से हैं, लेकिन ये सबसे प्यारा है। कल हमने बाग का जिक्र किया, तो बाग में हमने खासतौर पर प्लांट्स के हवाले से अल्फाज सीखे। तो मैं सोच रहा था कि बाग में बुलबुल भी होती है, बाग में तितली भी होती है, तो आज क्यों ना वर्ड ऑफ द डे में तितली पढ़ा जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली तितली इज फेमिनाइन। ठीक है, वो उसका पॉपुलर वर्जन है जेंडर वाइज उर्दू में। सिंधी में उसका पॉपुलर वर्जन जो है वो उसका मेल है, जिसको कहते हैं पोपट। पोपट, तितली इज पोपट। आप कोई भी मटीरियल, कोई भी नस्र या नज्म में कोई भी गजल या नज्म अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, अगर आप कोई कहानी ट्रांसलेट करेंगे, उसमें अगर तितली का जिक्र है तो डायरेक्टली आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे पोपट। वहां पर फेमिनाइन में जिक्र है, बहुत सारी तितलियां आती हैं, तो सिंधी में होगा थोड़ा सारा पोपट होया। मीन्स बिल्कुल आप उसको अपोजिट करेंगे, या उसके वर्जन को, उसके जेंडर वाइज वर्जन को। जेंडर वाइज सिंधी में तितली, बटरफ्लाई इज पॉपुलर एज मैस्कुलाइन जेंडर। पोपट इज अ मेल। उर्दू में तितली इज अ फीमेल। तो ये फर्क है कि उसमें जाहिर के दोनों में जो भी जिन्स हो, अल्लाह ने जो भी पैदा की, जोड़ों जोड़ जहान जी, उसमें जोड़ा ही होता है। लेकिन पॉपुलर वर्जन उर्दू में जो है उसका फीमेल है, सिंधी में मेल है। हाउ विल वी हिजेट? पे वा जबर पो, पे वा जबर पो, पे जबर प, टे पेस्ट पोपट, पे वा जबर पो, पे जबर प, टे पेस्ट पोपट। तीन हिस्से हुए इस हर्फ के। पो पहला हिस्सा प, दूसरा हिस्सा ट, तीसरा हिस्सा पो प ट, means तितली, butterfly. And how will we pronounce it? This can help you. The Roman versions can help you. P-O-P-A-T apostrophe U, apostrophe U. रबिया साहब नोट इट डाउन। पेश को ओ से नहीं शो करते, apostrophe ओ से नहीं शो करते, as you wrote in दिमश्क। तो प्लीज करेक्ट इट कि दिस इज पोपट। ठीक है, ओ लिखेंगे तो पोपटो हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी यू का मतलब होता है पेश, एपोस्ट्रोफी ए का मतलब होता है जबर, एपोस्ट्रोफी ई का मतलब होता है जेर रोमन लिखते हो। तो पोपट इज तितली, बटरफ्लाई। और अगर हम इसका अगर प्लूरल करना चाहें तो टे पर जबर आ जाएगी, पोपट। जैसे कल किया था हमने गुल,
गाफ पर पेश, लाम पर पेश, गुल मीन्स फ्लावर, और अगर ज्यादा फ्लावर्स हो तो गुल, गाफ पर पेश, लाम पर जबर। तो पोपट इज सिंगल पोपट, सिंगल तितली, और अगर जबर लग जाएगी तो पोपट मीन्स बहुत सारी तितलियां या बहुत सारे बटरफ्लाइज। व्हाट वाज सेंटेंस ऑफ द डे यस्टरडे? आई होप यू आर क्लियर अबाउट पोपट। Any questions about Popat, you can ask. You can raise your hand and you can ask if you have any questions. If not, we are moving. And who is going to tell me, not from those who have participated yet, any new participant? Can you tell me what was the sentence of the day yesterday? Fadila Sahib, are you there? If Fadila Sahib was not there, Nadeem Sahib, are you there? Nadeem Sahib, are you there? If Nadeem Sahib is not there, Rizwan Khan, are you there? If Rizwan Khan is not there, Mirza Shahbaz Beg, are you there? If Mirza Shahbaz Beg is not there, Mawash Aijaz Sahib, are you there? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मावश, कैसी हैं आप? ताकियां अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक आए हैं। तमाम की आए हो? मां भी ठीक है, अल्लाह जी मेहरबानी। कल जुमलो करो। What was sentence of the day yesterday? सर कल जुमलो हो अवा मुखे सजी गाल बुधायो। सजी, आप मुझे पूरी बलूचिस्तान कहानी सजी, बताएं। बलूचिस्तान सजी या कोयटा सजी? सजी 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 जी, सॉरी सर सजी 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 जी सजी तो वो होती है, आपने देखा होगा ना, राइट बलूचिस्तान सजी और कोयटा बिल्कुल सजी, बिल्कुल। वो होती है सजी खाने वाली। तो ये है सजी गाल है, हमको सजी गाल मीन्स इसकी ट्रांसलेशन क्या होगा? आप मुझे पूरी कहानी बताएं। Okay, who will tell me? Thank you, Mavish, and very good. Who will tell me अगर मेरा वेलकम सर। मुखातिब बेतकल्लुफ हो, मुझसे छोटा हो, मैं उससे बेतकल्लुफ हूं, तो इस जुमले को कैसे बोलूंगा? शायद इस तरह साहिबा, सर फिर हम कहेंगे तू मुखे सजी गाल बुधा। तू मुखे सजी, सजी या सजी? बलूचिस्तान सजी, सजी 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 सजी, बोलिए सजी सजी। सजी सजी कहेंगे तो सजी फिर ये मैं ये समझूंगा कि मतलब आप उसकी बात कर रही हैं जो सजी होती है, खाने वाली सजी। सजी ये जम्मू, सजी जम्मू एंड कश्मीर, सजी गालदा। ट्राई टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। थैंक यू शादी साहिबा। तो मुझे सजी गालदा, तो मुझे पूरी बात बताओ, पूरी कहानी बताओ, और आप मुझे पूरी बात बताइए। तो तमाम मुझे पूरी बात बताओ। आज का जुमला क्या है? वही बेतकल्लुफ गुफ्तगू, और उसमें मुझ पर एक इनायत करो। प्लीज डू मी अ फेवर। ये वो जुमले हैं कि जो आप आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। प्लीज डू मी अ फेवर, मुझ पर एक इनायत करो, मुझ पर एक मेहरबानी करो। मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी कर। ये कभी कभार आप गुस्से में कहते हैं, यार मुझ ते मेहरबानी कर, तो थोड़ी देर माट थी, मैं थोड़ी देर खामोश थे। Sometimes you don't want to listen anything from anybody, and you are in a process and a thought process or something else. So you don't like the speech of anybody, and you're sick of noises. So आप कभी कभार गुस्से में कहते हैं, और कभी कभार वाकई फेवर मांग रहे होते हैं, या तुम मुंह ते मेहरबानी कर, तो वो इस तरह से कहा जाएगा, मुंह ते। अब तुम का भी जिक्र नहीं, जैसे मुखातिब है उस जमीर का भी, जमीर मुतकल्लिम उसको कहते हैं, उसका जिक्र नहीं है। जमीर यानी जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त में आपको कान में डाल रहा हूं, ताकि कल जैसे मैंने एक फ्लैश दिखाया था और हाईलाइट दिखाया था, तो जमीर मुतकल्लिम कहते हैं, यानी कलाम जैसे किया जाए। तो मुंह ते यानी मुझ पर, मुंह यानी मुझ, मुंह मीन्स मैं, ते यानी पर, मुझ पर। हिकड़ी, याद रहे इसमें तस्गीर, हिक कहते हैं एक को, हिकड़ी यानी उसको छोटा करना। हिकड़ो मीन्स किसी मेल चीज की डिमांड कर रहा हूं। मुखे हिकड़ो नान दे, मुखे हिकड़ी मानी दे। मानी कहते हैं रोटी को, मानी कहते हैं खाने को भी, मानी कहते हैं चपाती को भी, लेकिन जब नान की बात आती है तो मेल हो जाता है। तो अगर मैं कहूंगा यार मुझे हिकड़ो नान तरे, तो मीन्स उसकी मैं अहमियत कम कर रहा हूं, ताकि मांगने वाले को ये ना लगे कि मैं कोई बड़ी चीज मांग रहा हूं। यार मुझे हिकड़ो हजार तरे, यार मुझे हिकड़ो कलाक दीने, कलाक मीन्स घंटा, यार मुझे हिकड़ो कलाक दीने मीन्स मुझे 1 घंटा दोगे। अब हिकड़ो मीन्स उसकी अहमियत कम कर रहे हैं आप, ताकि जिससे आप मांग रहे हैं वो 1 घंटा, वही ना समझ पूरा घंटा तुम्हें दे दूं, तो उसकी अहमियत को कम करते हैं। री या ड़ो, इसमें तस्गीर होता है, तस्गीर निकला है सगीर से। सगीर यानी छोटा, किसी चीज को छोटा करना। ये रिपीट कर रहा हूं, मेरे ख्याल में 10वीं बार रिपीट कर रहा हूंगा। बार बारडो मीन्स उसको छोटा और मासूम कर रहे हैं, ठीक है। बार इज बारडो, बेंच बेंचड़ी,
कुर्सी कुर्सिड़ी, टेबल टेबलड़ी, किताब किताबड़ो, छोटा कर रहे हैं। जैसे उर्दू में किताब किताबचा, मैंने आपको बता चुका हूं, बाग बागीचा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो हिक का इसमें तस्गीर है हिकड़ी। अब यहाँ पर हिक भी हो सकता है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, मुंतहिक मेहरबानी का। लेकिन चूंकि हम फेवर मांग रहे हैं तो उस मेहरबानी को बढ़ा करके नहीं बता रहे कि सुनने वाले का कि पता नहीं क्या मांगेगा मुझसे, पता नहीं इजाजत लिखवा रहे हैं, तो उसको बताना है कि एक छोटी सी फेवर चाहिए। यानी फेवर को आप छोटा सा तस्गीर में बयान करें ताकि उसको पता चले कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा। इसलिए हिकड़ी यहाँ पर एक्यूरेट होगा, एप्रोप्रिएट होगा। मुते हिकड़ी मेहरबानी कर, मुते हिकड़ी मेहरबानी कर भी उर्दू में मुस्तामिल है, मेहरबानी भी मुस्तामिल है। आप खुशकिस्मत हैं कि वो जुबान सीख रहे हैं कि जिससे उर्दू ने जन्म लिया है। यानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे कहने के अंदाज, और इवन जुमले का फॉर्मेशन के फेल आखिर में आता है, जमीर शुरू में आता है और मफूल दरमियान में आता है, या इसमें खास या सिफात दरमियान में आती हैं। ये अरेंजमेंट सारा सिंधी जैसा ही है, इंग्लिश की तरह नहीं है कि जिसमें वर्ब दरमियान में आता है, उसमें प्रोनाउन तो पहले आता है, वर्ब दरमियान में आता है, मफूल आखिर में आ जाता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता अगर ये दोनों लैंग्वेजेस इस तरह से मुख्तलिफ होती। तो मुंह यानी मुझ, मीम वा पेश, मीम वा नून गुना पेश, मुंह ते ये जबर ते, मुंह ते, हिकड़ी, हे जेरे हे, काफ जेरे के, रे ये जेरड़ी, हिकड़ी, मेहरबानी, मेहरबानी, मीम जबर म, हे जेरे हे, रे जेरे रे, बे अलिफ जबर बा, नून ये जेरनी, मेहरबानी। उर्दू में भी है, फिल्म का नाम है, मशहूर फिल्म का, नदीम शबनम की मशहूर, शायद गालिबन शबनम थी उनके साथ, लेकिन नदीम साहब तो थे। कर, काफ पर जबर, रे पर जेर, मेहरबानी कर, मुंह ते हिकड़ी, मेहरबानी कर। 50,000 गानों में लफ्ज मेहरबानी का इस्तेमाल हुआ है, 50,000 अशार में लफ्ज मेहरबानी का इस्तेमाल हुआ है। आम गुफ्तगू में समझता हूँ रोजाना आप कम से कम 10 बार तो इसको इस्तेमाल करते होंगे, इस लफ्ज को सिंधी में इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके सिनोनिम्स, नवाजिश, शुक्रिया, कितनी बार कहते हैं आप? थैंक्स। छोटी छोटी बात पर कोई आपको पेन उठा के दे रहा है तो आप कहेंगे थैंक्स, यानी आप मेहरबानी लफ्ज का इस्तेमाल तो करते हैं, कम से कम 10 बार तो दिन में करते होंगे। अगर यानी कर्टसी ना भी हो तो भी, रूड हो तो भी 10 बार तो करते होंगे मेहरबानी का इस्तेमाल, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात पर आप थैंक यू कहते हैं, मेहरबानी कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं। तो मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी कर, मुझ पर एक इनायत करो, प्लीज डू मी अ फेवर। जिस तरह से उर्दू में इनायत की जगह पर मेहरबानी भी इस्तेमाल कर सकता है, एहसान भी इस्तेमाल हो सकता है, इस तरह से यहाँ पर मेहरबानी की जगह पर एहसान भी इस्तेमाल हो सकता है। मुंह ते हिकड़ो एहसान कर, एहसान होगा तो हिकड़ो हो जाएगा, क्योंकि एहसान इज अ मैस्कुलाइन। तो ये मेहरबानी फेमिनाइन है, इसलिए हिकड़ी है, और ये इसमें तस्गीर है। अब तक आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो मुझे बताइएगा, उस पर एक अलग से सेशन का एक पीस करेंगे कि इसमें तस्वीर है क्या। मैं आपको बता चुका हूं कि ई में इंग्लिश में ई टी के जोड़ने से, बुक इज बुकलेट, किचन इज किचनेट, किचनेट, कैबिन कैबिनेट, गार्डन गार्डनेट, ठीक है। तो वो उसको छोटा करने के लिए वहां पर फॉर्मूला ई टी लगाने का है, मोस्टली उर्दू में चाह लगाने का है, ठीक है ना, किताब चाह, ठीक है, जिसको कुत्ता बच्चा भी पढ़ा गया। तो सिंधी में डी या डो, डिपेंड्स कि उसके बाद आने वाला लफ्ज जो है मेल है या फीमेल है। अगर मेल है फीमेल है मेहरबानी की तरह तो हिकड़ी, अगर एहसान होगा तो हिकड़ो, मुंह ते हिकड़ो एहसान कर, मुंह ते हिकड़ो कुर्ब कर, कुर्ब कहते हैं यानी प्यार से जो मेहरबानी की जाए, मुंह ते हिकड़ो कुर्ब कर, यार डू मी अ फेवर, फेवर, लेकिन वो कुर्ब उसको कहते हैं जिससे थोड़ी सी बेतकल्लुफी हो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत में नहीं लिखेंगे कुर्ब कर, कुर्ब कहेंगे अपने दोस्त को, साथी को, घर के फर्द को, यार कुर्ब तक कर, ये स्टाइल होता है फेवर लेने से पहले तमहीद बांधने का, मुंह ते हिकड़ो कुर्ब तक कर, ठीक है। कुर्ब, कुर्ब कर मींस, कुर्ब का मतलब वही है, कुर्ब का मतलब चाह है, मोहब्बत है, लेकिन इस जुमले में उसके मायने होंगे फेवर करो लेकिन मोहब्बत के साथ। ये उसको कहेंगे जिसके साथ मोहब्बत हो। अब रागीर तो नहीं कहेंगे यार कुर्ब तक नो, जिसको आप नहीं जानते उसको नहीं कहेंगे, जो आपसे बड़ा बुजुर्ग होगा उसको नहीं कहेंगे, या आप अपने हम उम्र को कहेंगे, अपने छोटे को कहेंगे, उससे कहेंगे जिससे आपकी फ्रेंकनेस है, जैसा ताजी हुज्जत हो जाए। मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी कर, मुझ पर एक इनायत करो, प्लीज डू मी अ फेवर is the sentence of the day. Any questions about this? Do you have a question about this? इसका एक और फॉर्म, अब आप जिससे मुखातिब हैं वो प्लूरल हैं, एक से ज्यादा हैं, या आपके बुजुर्ग हैं, तो आप कहेंगे आखिर में सिर्फ कर की जगह पर करियो हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखें, मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी तक सेम रहेगा, मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी जो मैंने आपको। So we were talking about the second, how to pronounce this sentence in another style.
अगर हमारा मुखातिब तब्दील हो जाता है तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर आपका मुखातिब, अगर हमारा मुखातिब जमा में है या हमसे बड़ा है, बुजुर्ग है, तो हम कहेंगे मुते हिकड़ी मेहरबानी करियो। कर जो है करियो बन जाएगा, ये वाव जबर का इजाफा हो जाएगा। मुते हिकड़ी मेहरबानी करियो, मुझ पर एक इनायत करें। यहाँ क्या था, या पहले वाले जुमले में क्या था, पहले वाले जुमले में था करो, इसमें है करें, इसमें सेम ही रहेगा, प्लीज डू मी अ फेवर। ठीक है, मुते हिकड़ी मेहरबानी करो, ये था मुते हिकड़ी मेहरबानी कर मीन्स बेतकल्लुफ है आप उसके साथ, आप उसका आपका उसके साथ तुम या तू का रिश्ता है। ठीक है, तो आप उससे कहेंगे मुते हिकड़ी मेहरबानी कर। लेकिन अगर आपका मुखातिब बड़ा है या प्लूरल में है, एक से ज्यादा है, तो आप कहेंगे मुते हिकड़ी मेहरबानी करियो, करें, मुझ पर एक इनायत करें, प्लीज डू मी अ फेवर। तीसरा फॉर्म, अगर बोलने वाले ज्यादा हैं, वफ्द है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, वो अपने कोच से कह रही है सर हम पर एक इनायत करें, हम पर एक मेहरबानी करें, हम पर एक एहसान करें। क्या एहसान करें सर, हमें मैच से पहले जो है 2 दिन हमें जो है वो मौका दिया जाए कि हम एक्सरसाइज कर सकें, हमें प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, बोलने वाले बहुत सारे हैं, टीम है, 2 है, 3 है, वफ्द है। ठीक है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे, उसमें कहेंगे असांते हिकड़ी मेहरबानी करें। बोलने वाले ज्यादा हैं तो असांते, मुंह की जगह पर हो जाएगा असां। इसमें देखा मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी करे में सिर्फ मुंह चेंज कर देंगे, ये मुंह चेंज कर देंगे, मुंह यानी मैं, तो उसकी जगह पर आ जाएगा असां या असी, असां या असी दोनों दुरुस्त है। अलिफ जबर अ, सीन अलिफ नून गुना, सीन अलिफ नून गुना जबर सा, असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो, असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो, असां ते हिकड़ो एहसान करो, असां ते हिकड़ी नवाजिश करो, राइट। असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो, हम पर एक इनायत करें, प्लीज डू अस अ फेवर। यहां पर ये अंग्रेजी वाला चेंज हो गया क्योंकि द सीकर्स आर इन प्लूरल, ज्यादा है, टीम है या वफ्द है या 2 लोग हैं या सिबलिंग्स हैं, और फादर से कह रहे हैं कि हमारी पॉकेट मनी बढ़ाई है। यहाँ पर ये एहसान कीजिए कि सुबह जो वैन मुझे पिक करती है वही वैन बहन को पिक कर ले। तो दिस इज बोलने वाले ज्यादा हैं तो असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो या असां ते हिकड़ो एहसान करो। तो 3 फॉर्म हो गए। पहला फॉर्म हुआ मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी कर, मुझ पर एक इनायत करो, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना कर। फिर है मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी करो, अब आप मुखातिब हैं, आपका मुखातिब जो है वो जमा में हो गया या आपका बुजुर्ग हो गया, आपके चचा है, आपके मामू है, आपके वालिद हैं, आपकी वालिदा है, तो आप उनसे कहेंगे मुंह ते हिकड़ी मेहरबानी करो, मुझ पर एक इनायत करें। और बोलने वाले भी ज्यादा हैं, सुनने वाले भी ज्यादा हैं, तो असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो, या बोलने वाले ज्यादा हैं और सुनने वाले एक हैं और बुजुर्ग हैं। मिसाल कोच से मुखातिब हैं, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से मुखातिब हैं, स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से मुखातिब हैं, आप अपने सीनियर से, मेंटर से मुखातिब हैं, तो आप कहेंगे असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो। पूरी क्लास अपने टीचर को कह सकती है सर असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो, काइंडली कल मींह वसी पे हो, कल बारिश हो गई थी, कल की अटेंडेंस हमें दे दे, हम नहीं आ सके थे, कुछ आए थे कुछ नहीं आए थे, तो अटेंडेंस कल की हम सबको दे दे, राइट। तो असां ते हिकड़ी मेहरबानी करो, दिस विल बी सेंटेंस ऑफ द डे इन दिस शेप। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? Any questions from your side? I hope you're clear. Right. क्या करेंगे हम? सिंधी आयोटा की जो पट्टी है उसमें अब क्या करने वाले हैं हम? पहले तो ये बताएं सिंधी आयोटा की पट्टी को क्या कहते हैं? जो हम 20 पट्टियों का मजमुआ है उसको क्या कहते हैं? Who will tell me? Who will guide me? आपको पता है मैं चीजें भूल जाता हूँ, तो आप में से कौन मुझे याद दिलाएगा कि सिंधी आयोटा की पट्टी यानी जो मजमुआ है 20 पट्टियों का उसको क्या कहा जाता है? जिसके बारे में बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त कि जिनकी मादरी जुबान सिंधी है, वो भी उन्होंने भी कहा था कि हमने नहीं पढ़ी है। तो हु विल टेल मी व्हाट इज दैट मजमुआ ऑफ 20 पट्टियां कॉल्ड? उसका एक नाम क्या है? मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, क्विकली मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। कक क्या कहते हैं? कक सर, कक कहते हैं। ओके, शादी सिराज साहब क्या कहते हैं? थैंक यू सर। शादी सिराज साहब क्या कहते हैं? सर कक कहते हैं। कक। थैंक यू। जल्दी साहब क्या कहते हैं? कक्कर नहीं सर, कक्कर तो बादल को कहते हैं, बादल को कहते हैं। डोंट मिक्स एप्पल्स विद ऑरेंजेस। कक्कर इज बादल, वो हमने वर्ड ऑफ द डे में पढ़ा था। मोहम्मद शर्जील साहब आपको बताएंगे क्या कहते हैं इसको। शर्जील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साईं, केड़ो हाल है? ठीक है जी सर, अल्लाह का शुक्र सर। अल्लाह का शुक्र है कि सिंधी में क्या कहते हैं? पहले बताएं, अल्लाह का शुक्र है कि सिंधी में क्या कहते हैं? अल्लाह जो शुक्र आए सही। अल्लाह जो शुक्र आए। है। जी हाँ, तो मैंने जब सिंधी में सवाल किया तो सिंधी में जवाब दें। जी
सर कक कहते हैं, कक। कक, ओके। कक नहीं, कक के आखिरी हर्फ पर हरकत होगी, वरना आप सिंधी नहीं बोल रहे। सिंधी की ये सबसे बड़ी निशानी है। थैंक यू शर्जिल साहब, थैंक यू शादी साहबा, थैंक यू इमरान जक्रिया साहब, एंड अटेम्प्ट किया जलील साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंधी आउटा ये पट्टी कक, और उसमें हम अब कल भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूँ कि किस पड़ाव पर पहुंचे हैं। कहड़े थाक ते पहुंचा आयूं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे विद दैट कक। उस कक का आज हम क्या करेंगे? हु विल टेल मी? कोई खरिया फरिया 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 टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। हु इज गोइंग टू टेल मी? फाइजा साहब, आर यू गोइंग टू टेल मी? मिर्जा शहबाज बेग साहब, आर यू गोइंग टू टेल मी? नदीम सऊद साहब, आर यू गोइंग टू टेल मी? अफरोज साहब, आर यू गोइंग टू टेल मी? नदीम सऊद साहब जी सर। केड़ो वाला, ठीक है? नए थाक दे पता आयूं, नए थाक ते पहुंचे नदीम साहब असला ता बुधाए खुश आयो। मां ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाउ थाक केड़ो आ? ए जो चार्ट है, ए जी जदवल है। ए जी जदवल है। थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? अफरोज साहब ता बुधाए सघंदो? फजीला साहब ता बुधाए सघंदो? आयशा खान साहब ता बुधाए सघंदो? एनीबॉडी? आज हम ए जो चार्ट करेंगे, क्या करेंगे? उसका आज हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। किसका? ए जो चार्ट। ए जो चार्ट करेंगे, ए यानी ए बी सी डी ये वाला? नहीं तो अलिफ ये अलिफ ये जबर। का चार्ट करेंगे। अलिफ ये पर जबर अगर लगाएंगे तो आए हो जाएगा, तो इसको अलिफ ये रहने दें, अलिफ ये का चार्ट, ठीक है? अलिफ जबर ये जो है वो आए हो जाएगा, ठीक है? जैसे 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 मई का महीना है, मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, मई का महीना है तो हम उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मई, MAY, ठीक है? लेकिन मई अगर कहेंगे तो मई हो जाएगा, शराब को कहते हैं, जाम को कहते हैं। तो इसमें दोनों में फर्क है ना, मई और मई में। तो अलिफ ये जबर जो है वो आए हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे ए का चार्ट, तो वो है अलिफ ये, सिंपल अलिफ ये। तो ये है ए का चार्ट। ये जो आए का चार्ट है उसके बाद आएगा 10वीं जदवल जो है वो है आए के चार्ट, ठीक है? तो ये जबर जब आएगी तो उसका प्रोनाउंसिएशन आए हो जाएगा, ये ध्यान में रखें, ये फर्क है। यानी अब अगर जब हिज्जे करेंगे हम, तो हम सिर्फ सिंपली कहेंगे अलिफ ये ए, बे ये बे ये बे। इसके बाद वाली जदवल में हम कहेंगे अलिफ ये जबर आए, बे ये जबर बे, बे ये जबर बे। दोनों को प्रोनाउंसिएशन फर्क है, दोनों से बनने वाले अल्फाज अलग अलग हैं, ठीक है? मायकशी को आप मेकशी नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? जिस तरह से कहा जाता है कि वो फनी खिदमत और फनी खिदमत, फनी जो है वो आपको पता है कि मुशद्दद से उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। फनी यानी मजे का खेज, जिस पर हंसा जाए, फनी यानी तुम फनी बात कर रहे हो। लेकिन फनी खिदमत यानी आपकी जो आपके शोबे की जो खिदमत है, तो ये फर्क होता है। तो हम पढ़ेंगे ए अलिफ ये का चार्ट, अलिफ ये ए, बे ये बे, बे ये बे ये बे, ते ये ते, ये वाला चार्ट जो है ना नमा पड़ा हो हमारा, जो नाव था का है आसान। सो द चार्ट इज बिफोर यू एंड आई डोंट वांट टू बी अ हिंड्रेंस बिटवीन द चार्ट एंड यू। मैं आपके और चार्ट के दरमियान मुदाखलत नहीं करना चाहता। हु इज गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग अ फ्यू वर्ड्स, फ्यू लेटर्स फॉर, ऑफ कोर्स व्हेन ये ऐड करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा। तो हु विल स्टार्ट रीडिंग इट? मोहम्मद जलील साहब। अस्सलाम सर। अस्सलाम sir, please raise your hand. Don't just jump into the class. I'll assign you who. Mohammed Jalil sahab, start please. Yes sir. Sir, अलिफ ये ए, बी ये बे। बी तो सर अंग्रेजी में होती है, हम सिंधी पढ़ रहे हैं इत्तेफाक से। बे बे ब ब ये बे। ब नहीं है सर, ब नहीं है। अभी तक आप ये नहीं समझे 10वीं 9वीं जदवल तक ये ब है या बे है या बा है। दिस इज बे। अलिफ बे बे भे ते। पहले तो आप उनके प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखें कि जब हम लेटर्स पुकारते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड के इसको क्या कहा जाता है। दिस इज नॉट ब, दिस इज नॉट बा, दिस इज बे। अलिफ बे बे भे ते। While one is reading, everybody has to listen to it carefully, क्योंकि जो करेक्शंस होती हैं वो सबके लिए हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बे प्रोनाउंस कर रहे हो, तो वेट फॉर योर टर्न। लेकिन ये ना हो उसमें कि ये पूरा करें तो उसके बाद में आऊंगा, ठीक है? लेकिन 4-5 हरूफ जो जलील साहब पढ़ रहे हैं वो भी आप गौर से सुने। जी जलील साहब, स्टार्ट फ्रॉम ए। सर अलिफ ये ए
गुड बे ये बे गुड बे ये भे बे ये बे अ, नहीं, आप कह बे रहे बे हैं और प्रोनाउंस भे कर रहे हैं। बे ये भे बे ये बे, बे नॉट भे, नॉट बे भे। ये बे ये बे, बे ये ये तो बे आपने दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़े। व्हाट इज द थर्ड तीसरा लेटर? थर्ड है बे ये बे 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 ये बे। बे बकरी बे कैसे करती है? बे बकरी ये कैसे? बे सर बकरी कैसे करती है? बकरी क्या आवाज निकालती है? ब बे ब करती है ना, वो ब बे वाला। बकरी करती है बे, जी तो वो है बे। बे बे ये बे नहीं सर, बे तो चलें, ये आपको शादी सराज साहब थोड़ी देर में बताएंगे, आप उसके आगे पढ़ें, बे के बाद पढ़ें। आगे सर भे ये भे ओके फोर्थ है जो भे जी जी भे ये भे ओके और फिर ते ये ते ओके। फिर ठे ये नहीं नहीं नहीं, ठे नहीं ठे है, ठे नहीं 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 है। ठे है लेकिन आगे है, ठे नहीं है। आपसे इसीलिए पढ़वा रहा हूँ ताकि पता चल सके क्या पहचान रहे हैं क्या नहीं पहचान। थैंक यू मोहम्मद जलील साहब फॉर योर अटेम्प्ट एंड आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट। शादी सराज साहब, आप थर्ड लेटर से पढ़ेंगे। जी सर। थर्ड लेटर से। जी थर्ड लेटर से, जो शुरू से पढ़ लें, शुरू से पढ़ लें। ठीक है। अलिफ ये ए, गुड बे ये बे, गुड बे ये बे, गुड। दोबारा बे ये कहें, बे, दोबारा पढ़ के सुनाएं। बे ये बे। बे ये बे, ओके भे ये भे, गुड ते ये ते, गुड। थे ये थे, थे है जलील साहब, दिस ते इज थे। जलील साहब लिसन इट, दिस इज थे। थे ये थे, थे तो आगे है, ये थे है। तो ते से दोबारा पढ़े शादी साहब ताकि समझ सकें क्या है। ते से पढ़े। ते ये ते, गुड थे ये थे, गुड टे ये टे, गुड ठे ये ठे। गुड। थैंक यू शादी साहब, थैंक यू। हु एल्स विल रीड इट? Mohammed Imran Zakaria Saab, read it from the second line. Mohammed Imran Zakaria Saab, quickly please come online. Quickly come online. से ये से, Good. पे ये पे, Good. जीम ये जे, Good. है ये है, ये है तो नीचे उसके सर, जीम जीम के बाद, जीम ये जे, उसके बाद जे ये जे, जे उसके बाद है। जीम और जे के दरमियान एक नाली है, उसको क्रॉस कर ऐसे टाप के कैसे जा सकते हैं नाली सर? ये इसको तो पढ़े। ये ने 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 तो नीचे वाली लाइन में नून है, ये तो नहीं है। थैंक यू सर। हु विल रीड दिस? हु विल रीड दिस? हु विल रीड दिस? आसिफ इकबाल साहब आप बताइए ये क्या है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा जवाब है जो हर जुबान में दिया जा सकता है? जान ना छुड़ाएं, सिंधी में बताएं कि आप तव्हां जो कहिड़ो हाल है? अल्लाह जो शुक्र आहे सर। अल्लाह जो शुक्र है। हाँ जी सर, ये पढ़े, यहाँ से जीम से पढ़े। जीम ये जे, गुड। जे ये जे, सर ये जे नहीं, ये जे ये हाँ, जे ये जे ये जे, ये मुझे सुनिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, फिर वैसा बोलने की कोशिश कीजिए। ये 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 चलिए आगे पढ़ें, फिर नदीम साहब आपको बताएंगे थोड़ी देर में। ये पढ़िए। जे जे ये हे, न्ये, दिस इज न्ये ये ने ये ने नहीं है सर, ये तो नून का आप प्रोनाउंसिएशन निकाल रहे हैं। नून और ये में तो कुछ फर्क होना चाहिए। आगे चलिए। चे ये चे, ओके छे थैंक यू वेरी मच। नदीम सोह साहब हिन खां पढ़ो, तव्हां जे खां वठी पढ़ो त जीअं साईं जन खे सम्झ में अचे ॻाल्हि। नदीम साहब रबिया साहब जीम से पढ़िए। जीम ये जे, गुड। जे ये जे, ये इसको बोलिए ये, इसी की प्रैक्टिस हम करें। ये इसको बोलिए ये
ये जी ये बोलिए ये। जे ये इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, यानी यहां पर भले ना करें, बाद में प्रैक्टिस करें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीम एंड ये, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, एंड दिस इज अ चैलेंज फॉर यू टू प्रोनाउंस, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर दोज हु आर अनेबल टू प्रोनाउंस इट। पढ़िए जीम से, दोबारा पढ़िए। जिम ये जे ओके गुड। जे ये जे जे ओके आगे पढ़िए। ये झे गुड। ये ने ये आप करीब तरीन कह रही हैं, एक्यूरेट नहीं कह रही, दूसरों से बेहतर कह रही हैं, लेकिन इसको ट्राई टू फिनिश इट। ये बोलिए। ये ने ओके ये चे ओके ये छे ओके हे ये है गुड। ये है। थैंक यू रबे साहबा। मकसूद साहब तव्हां ये ऐं ये प्रोनाउंस करे ॾेखारियो। मकसूद अली साहब ये ऐं ये प्रोनाउंस करे ॾेखारियो। मकसूद अली साहब, फाइजा साहिबा, मावश साहिबा, मावश साहिबा। जी सर। जी ये ऐं ये प्रोनाउंस करे ॾेखारियो। जी सर माविश। जी ये हाँ पढ़ी ॾेखारियो जी। ये ऐं ही पढ़ी ॾेखारियो। हरियप 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 कोई की पढ़ी ॿुधाई छा आहे, जंहिंखां पुछा आहे। ये त आख़िरी आहे, ये त आख़िरी आहे। ही पढ़ी ॿुधाए, ही छा आहे, ही छा आहे। सर ञे ये क्या है? ञे दिस इज ञे ञ ञे ञे। मुञ ञे ञे ये ञे पढ़ें ने पढ़ें ये ने ञे ये ञे। थैंक यू मकसूद अली साहब। ने ये ने। थैंक यू वेरी मच मकसूद अली साहब। मसूद अहमद साहब, वकास अली साहब, वकास साहब, ये वो तमाम दोस्त हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन करके म्यूट कर दिया कि वो जो चलता रहे आपकी अटेंडेंस शो होती रहे, ठीक है। तो ये दिस इज, कैन यू लिसन टू मी अटेंटिवली कि दिस इज ये दिस इज ञे ये ञे दिस इज ये जीम ये जे झे ये झे ये Aisha Khan Sahib, can you try to pronounce these both letters only, this letter and this letter? Can you help me pronouncing these? जी सर। जी इसको प्रोनाउंस कीजिए। जे ये जे जो आपने दूसरा अटेम्प्ट किया वो उससे करीब तरीन था। ट्राई टू मेक इट एक्यूरेट। दोबारा कहिए। जे ये जे गुड गुड गुड। दोबारा कहिए। जे ये जे यस। और ये ने ये ने। This is not noon. This is not noon. This is something different than noon. ञे इसमें जुबान टच नहीं करती, ऊपर भी टच नहीं करती, नीचे वाले तालु को भी टच नहीं करती, दरमियान में लहराती है। ञे। कैन यू प्रोनाउंस इट? ने करीब तरीन है इसको, करीब तरीन है, इसको एक्यूरेट करने की कोशिश कीजिए। जी दोबारा पढ़िए। ये ने। ओके आप होल्ड पे ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आगे आपसे पढ़वाऊंगा। शाजी सराज साहबा, कैन यू प्रोनाउंस दिस बोथ फॉर मी? शाजी साहबा। सर ओके सर, कोशिश करते हैं। जे ये नहीं सही कह रही हैं। दोबारा कहिए, 3 बार इन दोनों को मतलब बारी बारी पढ़िए। इसको पढ़िए दोबारा। जे ये जे गुड। ने सही कह रही हैं। ये को फिनिश कीजिए। दोबारा कहिए।
जे ये जे नहीं, फिर जे पर आ गए हम। ये पहले सही कह रही थी। ये ये जे ये जे नहीं, ये ये जे ये ये आपको दुरुस्त है। ये पर काम कीजिए। थैंक यू शायद इसराज साहब जी। आशा खान साहब आर देयर? जी सर। जी, रीड इट फ्रॉम हे। अच्छा, हे ये हे, गुड खे ये हे, गुड दाल ये दे, गुड। धा ये धा नहीं, दे, धाल धाल धाल। दाल डाल नहीं ना, ये डाल दे। डाल नहीं है, डाल नहीं है, धाल है, धाल ध। सारे गामा पा धा नहीं सा, ध अच्छा, ध धा ध ध। जी, धा ये दे, धा नहीं है, धाल है। दाल की तरह धा धाल है। हाँ, धाल है। धाल कहें या धे धा कहें, धा नहीं है ये। ठीक है, दाल से आइए, दोबारा दाल से आइए। डोंट बी कंफ्यूज्ड। दाल ये दे, ओके। धे धा धा अभी तो धे बताया, अभी तो ये बताया। हाँ, धे सही है। धाल या धे दोनों सही है। पढ़िए। धे ये दे, ओके। दे डे ये तो उसके डे, बाद है। डे से पहले क्या है? ये डे है। डे से पहले क्या है? डे से पहले नाइट होती है ना। ये क्या है? ये नाइट मेयर लग रहा है मुझे। डे डाल डे डाल ये डे। पढ़िए, डाल ये डे, दाल ये डे, डाल ये डे, दाल डाल ये ये डे। डे। आपको पता है कि ये आखिरी, इसके बाद मैं दूसरे किसी से पूछता हूँ। आपको पता है कि डे बजाते खुद जो है एक लफ्ज है सिंधी का, उसकी मीनिंग आपको पता है? नहीं सुना? मैं अगर आपसे कहूँ कि मुखे सूफ डे, मीनिंग आई समझ में? मुखे सूफ डे। हाँ, मुझे एप्पल दो। दो, राइट। दो। डे मीन्स दो। दो डेवट यानी लेन देन। लेन देन को कहते हैं डेवट। मुझे ना सा डेवट जो वास्तु कोने डे मतलब दो, वट मीन्स लो। डेवट सिंधी में लफ्ज है डेवट। ये वहां पर भी इस्तेमाल होता है जब वट्टा सट्टा होता है। एक घर की दुल्हन मतलब दूसरे घर की बहू बन के जाती है, एक घर की बेटी दूसरे घर की बहू बन के जाती है, फिर उसी घर से उस घर की बेटी जो है वो ब्याती है दूसरे उस घर में। तो उसको उसको जिसको वट्टा सट्टा कहते हैं उसको भी सिंधी में डेवट कहते हैं। इन्होंने डेवट कहिया। या किसी मामूली चीज की भी, मैं आपको पेन दूं आप मुझे कॉपी दें, तो ये डेवट कहलाएगी। बार्टर को भी डेवट कहा जाता है। तो डे इज इटसेल्फ इज अ वर्ड सिंधी में। डे का मतलब है दो। लेकिन अगर हम किसी बड़े से मुखातब होंगे या प्लूरल से मुखातब होंगे तो कहेंगे ड्यो ड्यो। राइट? आई समझ में बात? जी। तो ये है डे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आयशा तारिक साहबा। आयशा तारिक साहबा। रिजवान खान साहब, हितांगा पढ़ो। रिजवान खान साहब, रिजवान खान साहब, रिजवान खान साहब, वकास अली साहब, वकास अली साहब। यार ये इनके वकास अली साहब और ये इनके नोट करो, नाम नोट करो। करीम बख्श साहब, करीम बख्श साहब। अस्सलाम साईं, साईं खुश आयो खैर। कहिड़ो हाल आहे? तव्हां ठीकु आहियो? तो बि ठीकु आहे? अलाह करम आहे साईं। माशाल्लाह। थी वई एडमिशन? थी वई मरहला थी विया एडमिशन जा? हाँ थी विया, ये पहुंचे विया। अलाह जो शुक्र आहे साईं। माशाल्लाह, अल्लाह से भाग भला करे जान दीजिए। माशाल्लाह। सर पढ़ो सर, अॻिते पढ़ो। डाल खां किथां पढ़ूं साईं? डाल खां, डाल ॾेॾर खां, यानी चौथी सिट। डाल ये डे, डाल ये डे, गुड। डे ये डे, ढे ये ढे। ढे नहीं है, ये डाल है। डाल डाल या डाल ये डे, डाल ये डे, डाल रे, रे, वरी चो डाल खां वरी चो, वरी चो। डे ये डे, ढे ये ढे, डाल ये थे। ये ढे ना है, डाल खां पुछा है। साम्हूं ॾिसो, स्क्रीन ॾिसो, तव्हांजे साम्हूं स्क्रीन आहे? हाँ जी आहे। ॾिसो हाणे ॾिसो, डाल खां वरी अचो ऐं आराम आराम सां पढ़ो। डाल खां पोइ आहे डे, डे लाइ डे ये डे। हाँ, डे लाइ कीअं पढ़बो? डे ये डे, ढे ये ढे, न डे लिखी ढे ये ढे। डाल डे लिखी कीअं पढ़बो? डे ये डे, न डे ना है, डे तो तव्हां पढ़ी
डाल लेडर पढ़ी आयो डालिए डे इहो तव्हां पढ़ियो हा अच्छा डालिए डे ॿुधो पढ़ंदा वञो पर जेसि ताईं मां ओके न कयां तव्हां अॻिते नेक्स्ट अखर न चओ हाणे तव्हां डालिए ॾे खां अॻिते ठीक पढ़ो है डालिए डे गुड ढालिए डे ढाल ना है साईं डाल है डाल डाल डेये डेल डे डाल डे डेल डेल चवंदा डाल डेये डेल डे हाँ डे ये इसे डे ये हाँ, ठीक है डालिए डे डाले डे या डे सही है पर तव्हां ढाल था चओ पिया उन करे मां हुनजो किन थो कयां वरी चओ डालिए डे डालिए डे ढाल डे ढालिए डे ही छा आहे ज़ालिए जे गुड ढेये ढेये ढे जे लॻो हाँ ठीक आहे उन खां पोइ ही ढेये ढे ज़ालिए जे ओके रहिए रे ओके रहिए रे थैंक यू जइए से थैंक यू करीम साहब सीने से थैंक यू सीने करीम से थैंक यू स्वादिये करीम से थैंक यू ज़ादिये से आपका स्टॉप का बटन क्या सोये है से स्टॉप का जोये बटन से स्टॉप का बटन एनिए क्या है? ए वेनिए वे फेये फे काफी के काफी के ए थैंक यू वेरी मच काफी के खेये खे गेये गे घेये गे ये लांगे ले थैंक यू वेरी मच सर मीमिये में थैंक यू वेरी मच रोनिये ने सर थैंक यू वेरी मच रोनिये ने थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया जी Thank you very much. Ji, who else Yes, will sir. come? Who else will come to read? Thank you, Karim Saab. Who else will come to read? Who is going to read it from Re Ye Re? From Ye Re Ye Re. Aisha Tariq Sahaba. Eileen Sahaba will read it from Re Ye Re. Eileen Sahaba will read it from Re Ye Re. यस सर जी, क्या है Eileen Sahaba? मैं ठीक है दवा क्या है मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. जी, रेखा पढ़ो. रे ये रे रे ये रे जे ये जे सीन ये से Good. शीन ये शे Good. स्वाद ये से So good. ज़ाद ये जे Thank you very much. Rizwan Khan Sahab. Rizwan Khan Sahab, तव्हां पढ़ंदो ज़वादी ज़े खां अॻिते. रिज़वान खान साहब तव्हां पढ़ंदव रिज़वान खान साहब जी पढ़ो जी सर जी पढ़ो हितां खां पढ़ो ज़ादिये जे पढ़ो उते पढ़ो ए वरी पढ़ो यानी अगे फे वरी पढ़ो मुंहिंजा साईं वरी पढ़ो ज़वाद खां वरी पढ़ो वरी पढ़ो मुंहिंजा साईं ज़ादिये स्वाद ऐं ज़वाद खां पोइ पढ़ो यानी अॻिते ए स्वाद ऐं ज़वाद खां अॻिते पढ़ो मुंहिंजा साईं गेनिया ज़ादिये जे ही पढ़ो साद साद वॾी महिरबानी रिज़वान साहब there's a connectivity problem I think so मां जेको तव्हांखे पढ़ाइणु चाहियां थो तव्हां उहो कोन था पढ़ो पिया वॾी महिरबानी आसिफ इकबाल साहब can you please help me reading a few letters स्वाद ये से गुड स्वाद ये दे हाँ दे नहीं होगा सब द्वे अरबी में होता है ज़वादी द्वे आप ज़वादी द्वे कहेंगे जी जी तो ये दे जो ये जे गुड एन ये एन ये आए हाँ गे नहीं कहेंगे नून नहीं है सर एन ये आए गैनी गे एन ये आए गैनी गे फे ये फे काफ ये फे के बाद क्या है सर फे ये फे फे के बाद क्या है फे के बाद क्या है सर ये क्या है काफ ये क्या है काफ ये क्या है काफ से पहले क्या है सर काफ से पहले क्या है ये सर ये फे हाँ फे ये फे सही है ये क्या है काफ ये के थैंक यू वेरी मच सर आसिफ इकबाल साहब काफ ये थैंक यू वेरी मच आसिफ इकबाल साहब थैंक यू वेरी मच के अब जीशान साहब जी सर जी जीशान साहब जी यहाँ से पढ़िए फे ये फे काफ ये के
काफ ये हे ये आपके स्पीकर ऑन होने की वजह से फीडबैक मुझे आ रहा है, तो आपकी आवाज डबल सुनाई दे रही है। तो कभी कभार प्रॉम्प्टर की आवाज सुनाई देती है, कभी आपकी आवाज डबल सुनाई देती है। तो कैन यू हेल्प मी रिड्यूसिंग दैट वॉइस? और अगर आप हेडफोन्स के थ्रू मुझे सुने, मुझे पता है आप दोनों भाई एक साथ ही सुन रहे होंगे स्पीकर पर, लेकिन कैन यू ऑफ इट फॉर अ व्हाइल? आप काफ से आगे पढ़िए, काफ से आगे पढ़िए सर। काफ से आगे पढ़िए, काफ काफ काफ, कलम कलम वाले काफ से आगे पढ़िए। अच्छा, काफ ये के खे ये खे सर। काफ काफ कलम वाले गाफ ये गे काफ कलम वाले काफ आप समझते हैं सर? गे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी, 2 नुक्ता वाली। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, नदीम साहब जी सर। जी पढ़ो, काफ काउंटी पढ़ो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। काफ काउंटी पढ़ो साईं। काफिया के खे ये खे काफ कलम खा गाफ मुझे ये मुझे गे, साईं, काफ ये कलम खा ये मुझे काफ कलम खा पहुंचंदो त हिकड़े काफ खां पोइ ॿियो काफ बि ईंदो। कॉफ ये के ठीक, कॉफ ये के काफ ये के खे ये खे गाफ ये गे ये गे घे ये घे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ही छा है सर? ये हिनखे ॿ दफ़ा पढ़ी ॿुधायो, ही छा है? तो जीअं सब सुने उसको, ये क्या है? ये अगेन ये अगेन ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैजान अहमद साहब, कैन यू रीड फ्रॉम घे? कैन यू रीड फ्रॉम घे? कैन यू रीड फ्रॉम घे? जी सर। जी sir, I don't have time sir, please if you have time please read it, otherwise I'll read it myself. ये अगेन पढ़िए, घे से दोबारा पढ़िए। घे ये ओके। ये नहीं है सर, ये नेजल वॉइस है, नाक से निकल रही है खालिसतन। लाम ये ले मीम यहाँ से निकल रही है आवाज, यहाँ से। कैन यू सी मी? यहाँ से निकल रही है ये दिस नॉट ये। ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू प्रोनाउंस इट। ये कैन यू लिसन टू मी सर? इफ यू कांट लिसन टू मी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हमजा साहब, यहां से आप पढ़ सकते हैं घे से। मोहम्मद हमजा साहब। यस सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, घे से पढ़िए सर। गे ये गे जी, गे ये घे ये घे ने ये ने Can you pronounce this word from here? The central part of your nose. Yes sir. Nye. Yes, ने ये nye. Okay. लाम ये ले. Okay. मीम ये मे. Good. नून ये ने. Good. णे ये णे. Good. वाव ये वे. Thank you, Hamza Saab. Thank you very much. Thank you very much, Hamza Saab. Rabia Sahaba? Yes, sir. Read the last line. मीम ये में, Good. नून ये ने, Good. नून ये ने, Good. वाव ये वे, Good. हा ये है, हे ये है. हे ये है, Good. हमजा ये, Good. ये। ये ठीक है। अच्छा, कैन यू प्रोनाउंस द सेकंड लाइन में ये जो दो हरूफ हैं जो मुश्किल तरीन है, ये पढ़ सकती हैं आप? ये पढ़े और ये पढ़े।
सर ट्राई करती हूँ। जी ट्राई कीजिए। गे ये गे, बोलिए गे ये गे, गे ये गे, गे 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 गाऊं, ये गाऊं, ये गाऊं इस गाय गाऊं। बोलिए गे ये गे, ओके, इसको पढ़िए। निये ये निये, गे, कैन यू रीड इट फ्रॉम हेयर? कैन यू क्रिएट दिस वॉइस फ्रॉम हेयर? यहाँ नाक की बिल्कुल दरमियान से गे गे, कैन यू से इट गे? निये ये निये। गे, चलें, थैंक यू, thanks for attempting. Aisha Khan Sahaba, can you attempt these both letters, the difficult one, ge or nge, ge or nge? Can you read this both? जी सर। जी। गे गे ये गे, गुड, वेरी गुड, दोबारा पढ़िए। गे ये गे, गुड, इसको पढ़िए। ने ये ने। हाँ, इसको नून से थोड़ा सा अलग कीजिए, ने कीजिए, ने नहीं है यह ने। ने में आप देखें, ने जब प्रोनाउंस करती हैं तो जुबान ऊपर वाले तालु से टच होती है, ने टच हो रही है। आप ने कहें, ने कहें, ने कहें, ये वाला ने टच हो रही है ऊपर वाले तालु से। इसमें टच नहीं होगी, ने इसमें लहराएगी दरमियान में और आवाज यहां से निकलेगी, ने। बोलिए ने, बोलिए ने 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 ने। और बहुत सारे लोग इसको ञे को और ङे को बराबर समझते हैं, आपस में एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों फर्क है। ये ञे, ये ङे, ये नाक से नहीं निकल रही, ये ञे ये सीधा मुंह से निकल रही है, ब्लो हो रही है, और इसमें नाक से निकल रही है ङे। ङे इज क्रिएटेड फ्रॉम योर नोज। थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग एंड आई अप्रिशिएट दिस। आयशा तारिक साहबा, कैन यू attempt these both letters? Aisha Tariq Sahaba, Nge and Ge, can you help me pronouncing these both letters? If you're not there, Shazi Isra Sahaba, can you attempt these both letters? Yes, sir. Ji. Ge ye ge, Good. ने ये ने, Nge, करीब तरीन है, Nge करीब तरीन है। ये जब आप कह रही हैं पहली बार सही कह रही हैं, फिर जब पूरा लफ्ज पढ़ें तो गे हो जाता है वो। तो गे ये गे, बोलिए गे ये गे, गे ये गे। गुड, आप पढ़िए। ने ये ने, ङे, करीब तरीन है। ट्राई, देखें ये भी प्रोनाउंस करें। क्या नाम है इनका? आपकी बच्ची का नाम क्या है? आपकी बच्ची का नाम क्या है? नेहा फारूक। अच्छा, तो ये भी ट्राई करेंगे। फीहा फारूक, ओके। तो फीहा भी ट्राई करेंगे ये प्रोनाउंस करने की। थैंक यू जी, ये हमारी कामयाबी है कि हम दो नस्लों को एट अ टाइम पढ़ा रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया शादी साहब जी। तो अब जो है, इससे पहले कि मैं इसको पूरा रीड करूं, ये जो हरूफ हैं जो आपके लिए खतरनाक हैं, जो आप समझते हैं कि ये यानी क्या कहते हैं, बारूदी सुरंगें हैं, इनसे गुजरना बड़ा मुश्किल है। आप कहते होंगे जो चार हरूफ में पढ़ूं, अल्लाह करे कि उसमें कोई मुश्किल लफ्ज ना आए। मैं कहता हूँ अल्लाह करे मुश्किल लफ्ज आए, मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मुश्किल हर्फ आए ताकि मैं उसको सीख सकूं, राइट। तो मैं आप इसको इनमें प्रोनाउंसिएशन फर्क आपको बताता हूँ। ये जो मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल हरूफ हैं, आप जरा गौर से सुनिए, इफ यू कैन लिसन टू मी केयरफुली। दिस इज ये आपकी जुबान की चोटी आपके ऊपर वाले तालु से हल्की सी टच हो रही है, हल्की सी स्लाइटली टच हो रही है, उससे रगड़ नहीं खा रही। ये दिस इज ञे में और ङे में फर्क है। ञे में नाक से आवाज नहीं निकलती, ञे में ब्लो होती है आवाज, आपकी जुबान लहराती है दोनों तालुओं के दरमियान, ऊपर वाला तालु नीचे वाला तालु दरमियान में लहराती है, राइट। इसमें ञे में नाक से नेजिल आवाज निकलती है, घुड़ों आवाज निकलता है। ञे ये ञे, दिस इज ञे ये ञे, दिस इज ञे ये ञे, दिस इज गे ये गे। और ये थोड़ा सा कम खतरनाक, डाल ये डे या डे ये डे, डाल ये डे बता खुद ये एक वर्ड है और बहुत सारे वर्ड्स में आता भी है। छडे मीन्स छोड़कर, अडे मीन्स तामीर करके, बहुत सारे अल्फाज में ही आता है, ठीक है। तो डेडर बता खुद डेडर में यही तो आता है, डालिए डे, डाल जबर डे पेश डे डर, राइट जी।
तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, जो पहला मरहला है उसमें जो मुश्किल हरूफ है उनके बारे में बात कर रहा था। तो दिस इज ये, दिस इज ये, दिस इज ये, दिस इज ये, ये आपके लिए मुश्किल तरीन चैलेंजिंग 4 हरूफ हैं। और उससे कम जो चैलेंजिंग है वो है ये डाल ये डे और डे ये डे। डे ये डे कम होता है, नून ये डे वो कुछ लोगों के लिए होता है आपके लिए चैलेंजिंग। इमरान ज़करी साहब, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर ये जो ऊपर वाली 2 लेना में उसकी आवाज ने ये ने, और नीचे वाली आखिरी 2 लेना में जो आप पढ़ते हो नहीं, आप तो नून कहते इन हैं, दोनों आप नून कह रहे हैं, आप नून कह रहे हैं, इसको आप नून ना कहें। ये नून नहीं है, नी है, नी यन्य मुन्य मंजण मानना, किसी को मानना। माँ तो के मन्या थो माँ वन्या थो, मैं जा रहा हूं। वन्या इज ऑल्सो मेड ऑफ नी, दिस इज नी नॉट नी। वन्ना थो नहीं होगा। ये मुखे उन्य लगी है, मुझे प्यास लगी है, प्यास को कहते हैं उन्य। कर लेते हैं कल या परसों उसका वर्ड ऑफ द डे। उन्य मीन्स प्यास। थर्स्ट is called unya, alif pesh u, nye zabar nya, unya। तो दिस इज नॉट ने, दिस इज nye, उन्य नहीं है, ठीक है। ऊन को कहते हैं जैसे स्वेटर बुनते हैं। तो उन्य थर्स्ट इज मेड ऑफ दिस, वंजन जाना इज मेड ऑफ दिस, और मंजन मीन्स मानना इज मेड ऑफ दिस। तो दिस इज nye नॉट ने। और ये जो है ये है नी। मैंने बताया इसमें जुबान आपके लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स, जुबान लहराएगी दोनों तालों के दरमियान, इसमें नाक का कोई अमल दखल नहीं है। नी में आवाज निकलेगी ही यहां से, नी मुंह से नहीं निकलेगी, नाक से निकल रही है आवाज, नाक से निकल रही है नी। दिस इज नी, यहां से आवाज आ रही नी। उसमें आपकी जुबान कहीं टच नहीं होगी। नून में टच होती है, नून में आप देखें ने प्रोनाउंस करके देखें, ऊपर वाले तालू से स्लाइटली टच हो रही है। तो जुबान टच नहीं होगी, जुबान का इस्तेमाल नहीं है, नोज का इस्तेमाल है। लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स में से नी में नोज का इस्तेमाल है। कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर जी, थैंक यू। अब मैं इसको प्लेन रीड करता हूँ, ठीक है। सब इसको गौर से सुनिए कि जो प्रोनाउंसिएशंस आपसे मिस हो गई तो वो आप देख लीजिए। अलिफ ये ए, बे ये बे ये बे, भे ये भे, ते ये ते। अलिफ ये ए, बे ये बे ये बे, भे ये भे, ते ये ते। थे ये थे, टे ये टे, ठे ये ठे, जिससे आता है ठूठ, एल्बो, ठे ठूठ, ठे। उसके बाद आता है से ये से, पे ये पे, जे ये जे, ये। मुश्किल उर्फ को मैं 3 बार भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ, 10 बार भी कर सकता हूँ, 100 बार भी कर सकता हूँ। until and unless you don't understand, you don't take it, you don't get it, you don't adopt it, I will be repeating and I don't have any harm in repeating it। आप मुझसे 100 बार पूछें, 100 बार मैं आपको बताऊंगा जब तक आपको समझ में आए। ऑफ कोर्स ये बात याद रखिए कि ये these letters need your practice makes man perfect, right? तो मश्क से ये दुरुस्त होंगे। जब आप अपने तौर पर इनको प्रोनाउंस करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बच्चे भी साथ प्रोनाउंस कर रहे थे। तो आप अगर अपने तौर पर जो है इसको प्रोनाउंस करेंगे, भले बच्चे आपके साथ जो है सुर में सुर मिलाए, अच्छी बात है, दैट्स गुड थिंग। तो ये प्रैक्टिस से मजबूत होगा। इसलिए कि आज तक आपने इन हरूफ का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो इसलिए नहीं आते। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, इस दुनिया में आकर ही सीखता है। अब यह है कि जिनको आता है उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया उसको। नेट प्रैक्टिस जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूती से आप इनको पकड़ सकेंगे। तो जिन पर ग्रिप नहीं है, जो आपने उर्दू में पढ़े वो तो ठीक है, पर जिन पे ग्रिप ना है उनके तो बार बार पढ़ो है ना। जिस बॉल पर, जिस पिच पर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, उस पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ओवर्स खेलेंगे आप नेट प्रैक्टिस में, तो आप अगले दिन परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। तो दिस इज ये झे ये झे, ये झे ये झे, ये मुन्य हमने पढ़ा था, यानी एक खास किस्म उस डोरी का कि जिससे चारपाई बुनी जाती है, उसको मुन्य कहा जाता है। उन्य कहा जाता है प्यास को, थर्स्ट को, ठीक है। इसी तरह से वंजण मीन्स जाना, मंजण मीन्स मानना, ठीक है। तो ये पिंजण मीन्स वो जो कभी आपने देखा है कि किसी रुई के ढेर को
जब रजाई में डालने से पहले उसको लकड़ी से जो है उसको प्रेस किया जाता है, जेनिंग की जाती है उसकी। अब तो जेनिंग फैक्ट्रीज हैं, लेकिन पहले एक बड़ी लाठी लेकर उसकी जेनिंग की जाती है ताकि उसकी मट्टी निकले, एक मट्टी निकले और दूसरे जो उसके तोदे बने हुए हैं वो अलग अलग हो जाए, यानी वो जो ब्लॉक्स उसके बने होते हैं वो टूट जाएं आपस में रुई के। तो उसको पहले गांव देहातों में ये होता था कि जमीन पर रख के किसी बड़ी चादर पर बहुत सारी रुई को जो कि डाली जाती थी सवड़ में, रजाई में, उसको रख के और उसको लकड़ी के साथ, लाठी के साथ, स्टिक के साथ उसको बीट किया जाता था ताकि उसके जो तोदे बने हुए हैं वो अलग अलग हो जाए। उस अमल को कहा जाता है पिंजण। पिंजण यानी वो ही कपह के पिंजे तो पिंजण, उस अमल को कहा जाता है। तो मुश्किल बात, लेकिन याद आ गई तो बरसबीले जो मैंने आपको बताया। तो दिस न्ये ये न्ये, ये न्ये ये न्ये, चे ये चे, छे ये छे, हे, खे ये खे, दाल ये दे, ढाल ये धे या धे ये धे, ढाल ये धे, दाल ये दे, ढाल ये धे, डाल ये डे। मैंने बताया कि बजाते खुद एक लफ्ज है और बहुत सारे अल्फाज में आता है, छडे, बुडे, सडे। सडे तो उसको बुला तो लेना। सडेण इज मसदर, मीन्स बुलाना। छडेण मीन्स छोड़ जाना, इज मसदर। लेकिन छडे, तुम छडे न वन, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। भले बुडे तो बुडे, भले डूबे तो डूबे। बुडे मीन्स डूबना, बुडणो मीन्स डूबना, बुडे मीन्स डूबे तो डूबे, ठीक है। बुडे तरे, डूब रहा है और तैर रहा है, बुड तरह जिसको कहा जाता है। तो डे के साथ बहुत सारे अल्फाज है। अडे मीन्स तामीर करे। इसी तरह से मुँह घर अडे छड़ियो है, मैंने घर तामीर कर दिया। मुंह या कहा जाता है कि भाई फला शे, फला प्रैक्टिस, मैंने नमाज पढ़ना शुरू की और नमाज ने मुझे संवार दिया। तो सिंधी में कहेंगे मुँह नमाज पढ़ना शुरू करी, नमाज मुखे अडे छड़ियो, यानी मुझे उसने संवार दिया, निखार दिया। तो ये डाल ये डे, डाल ये डे, ढाल ये ढे, दोनों में फर्क है। डाल ये डे, ढाल ये ढे, डाल ये डे, ढाल ये ढे, जाल ये जे, रे ये रे, डे ये डे। हर्फ तो है उर्दू में लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ है। 12 हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी आवाजें सेम है, शक्ल मुख्तलिफ है। जे ये जे, सीने से, शीने से, स्वादे से, ज्वादे ज्वे, त्वे ये त्वे, जुए ये जुए, ऐन ये आए, गैन ये गे, फे ये फे, फे ये फे। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कीजिए। फे फे, फे फे, ये फूल वाला है, ये फूल वाला है, ये फर्क वाला है, ये फिराक वाला है। फिराक यानी जुदाई, ठीक है, विछोड़ो। ये फे है, फूल, फल, फूलना, ठीक है, ये है फे। फे ये फे, काफ ये के, काफ ये के, खे ये खे। रिमाइंड दिस, अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाएं कि ये उर्दू में काफ होता है, सिंधी में खे होता है। जिस तरह सिंधी में, उर्दू में इसके साथ हे मिलाने से खे होता है, ये खे है, ठीक है। और खे में खड़ी जेर नहीं है। तो ये भी हम जो पढ़ रहे हैं ये आपको वैसे तो ये बड़ी ये लगेगी, लेकिन ये जबर की काफी है तमाम। खे ये खे, गाफे गे, गे ये गे, गे ग ग ग ग, बोलना, तलाश करना, गऊं, गाय, घे, घे ये घे, गे, लाम ये दे, मीम ये में, दिस गे, सिंगू, आपने पढ़ा था सिंग, गे सिंगू, गे से कोई हर्फ शुरू नहीं होता, लेकिन हमने सिंग के लिए सिंगू जो पढ़ा था तो वो सिंगू एंड्स विद गे। अब जब नहीं शुरू होता कोई लफ्ज तो हम कहाँ से लाएं? तो जाहिर है कि हम उसको ऐसा लफ्ज की मिसाल देते हैं कि जिसमें वो इस्तेमाल हुआ है, पहले हर्फ से, वहां से शुरू नहीं हो रहा चाहे, लेकिन किसी और हर्फ से शुरू होकर उस पर खत्म हो रहा। सिंग गे, दिस गे सिंग, दिस गे गऊं, गऊं इस गाय, गे ये गे, घे ये घे, गे ये गे, लाम ये ले, लाम ये ले। उर्दू में भी लफ्ज है ना, ले दे, उसने ले दे कर दी, यार ये तू ले, या तू ले मुझसे, लेकिन सिंधी में लफ्ज नहीं है। इंग्लिश में भी है ले मैन यानी जो अनाड़ी बंदा उसको कह रहे ले मैन। ले, लाम ये ले, मीम ये में, नून ये ने, ऋण ये णे या णे ये णे, वाव ये वे, हे ये हे, हमजा ये ए, हमजा ये बताते खुद तो कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लफ्ज में ये मिलकर एक लफ्ज बनाता है। मिलाए, मिलाकर, खिलाए, हंसाकर, मिटाए, मिटाकर,
ठीक है, सजाए, सजाकर, और ये है ये, ठीक है। तो ए से लेकर ये तक, ये था हमारा पहला मरहला इस 9th चार्ट का। ए जो चार्ट, अगर इस पर जबर आएगी तो नेक्स्ट चार्ट बन जाएगा, दैट इज आए, ठीक है। आए, बाए, बाए, ताए, थाए, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, इन दोनों से बनने वाले अल्फाज अलग अलग हैं। अगर ऊपर जबर नहीं आ रही तो ये होगा ये, ए, बे, भे, ते, थे, ठे, राइट। तो आर यू क्लियर अबाउट व्हाट वी रेड? आर यू क्लियर अबाउट के जबर नहीं आती तो क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या सुर होता है, क्या उसका रिजल्ट होता है बोलने में, और अगर जबर आती है तो क्या उसका रिजल्ट होगा, जो कि नेक्स्ट हम पट्टी पढ़ेंगे। तो कल हम इसका तफसीली रिवीजन करेंगे, और पॉसिबल वर्ड्स भी जो है, पॉसिबल वर्ड्स लिखेंगे नहीं, वो तो हम मश्क में लिखते हैं, लेकिन उनका जिक्र जरूर करते चलेंगे। और आपके जहन में अगर कोई इससे बनने वाले अल्फाज तो आप लिख लीजिएगा अपने पास, ए, बे, भे, ते से आप देख लीजिएगा, रिवाइज करके अपने पास लिख लीजिएगा। जब मैं पूछूं कि जे से पॉसिबल अल्फाज कौन से हैं, से कौन से हैं, शे से कौन से हैं, गे से कौन से हैं, फे से कौन से हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिसाल से कौन सा है, सेज, उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं कि जो खे, मुंह खे, तो खे, असा खे बता खुद एक लफ्ज है खे यानी को आगे मुंह लगाएंगे तो मुझे, असा मीन्स हमें, तो खे तुम्हें, तो खे तुम्हें, असा खे हमें, मुंह खे मुझे, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं, जो पॉसिबल अल्फाज अपने पास लिख लीजिएगा। कल हम इसका तफसीली रिवीजन करेंगे, और मंडे के रोज इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो मंडे के रोज हम असेसमेंट टेस्ट भी होगा, और उसके साथ साथ जो है वो हम इसकी मश्क भी करेंगे। इमरान ज़कीर साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? सर प्लीज ये दाल वाले 4 लफ्ज दोबारा पढ़ें, थैंक यू। दाल वाले 4 तो नहीं है, दाल वाले 6 हैं। जी ये वाले सर, जाल से पहले सर। जी जाल से पहले या रे से पहले तक मैं पढ़ लेता हूँ। दाल ये दे, धाल ये दे, गौर से सुनिएगा, दाल ये दे, धाल ये दे, दाल ये दे, धाल ये दे, ढाल ये ढे, जाल ये दे, दाल ये दे, अगेन आई एम रिपीटिंग, दाल ये दे, धाल ये दे, डाल ये दे, डाल ये डे, ढे ये ढे, जे या जाल ये जे, राइट, क्लियर? जी थैंक यू सर, शुक्रिया। कम वकास साहब, you have a question? You have a question, वकास साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कीअं ठीक है सर? माज़रत सर, तव्हां आवाज़ माना तव्हां सॾु कयो पियो, मां गाॾी ते हुअमि, रस्ते ते, इन करे न ॿुधी न सघुमि तव्हां सर आवाज़। कोई मसलो कोन्हे। Any questions? सर क्वेश्चन को कोन्हे सर, थैंक यू सर। Thank you. जी, any questions? So let me remind you before I say goodbye. लेकिन उस रिमाइंड करवाने से पहले, who will tell me the poem? Who is going to read the poem for me? Who is going to read poem for me? Ada a, bhali a, ji a, manika, brother come. Bhali a, sure you come. जी आ, वेलकम यू कम। कैसे साहब होल्ड कीजिएगा, पहले दूसरों से सुन लूं। वका साहब तव्हां तो प्राइमर में पढ़ियो आहे न, मां उनखां तो ॿुधणु चाहियां जिन खे यादि करायो, जिन पहिरियों दफ़ो पढ़ियो आहे। असां सभिनी सिंधी ॿाराणी किताब में पढ़ियो आख़िर में, मां उन्हनि खां तो ॿुधणु चाहियां जिन खे पहिरियों दफ़ो सेखारियो वियो आहे। सो ब्रदर कम, यू आर मोस्ट वेलकम कम, यू आर वेलकम कम, प्लीज हैव मील्स, पानी खा, पानी पी, ड्रिंक वाटर। सदा जी, गॉड ब्लेस यू। जी मोहम्मद जलील साहब। अदा आ, भले आ, जी आ, मानी खा, पानी पी, सदा जी। सदा जी, वो कहेंगे मुझे जीने की दुआ देने से पहले इतना सोच रहा है सदा जी, तो ये इसमें गड़बड़ है। वो जिसको आप दुआ देंगे वो कहेंगे भाई आर यू नॉट श्योर कि यू आर प्रेइंग फॉर माय लॉन्ग लाइफ। तो उसमें मैं आई विल वेट फॉर कि आप रवानी से पढ़ें। कैन यू टेल मी, शेयर विद मी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम? भाई आओ, खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद आओ, अदा जी आ मींस खुश आमदेद आओ, रज रज के आओ, खुश आमदेद आओ,
रोटी खाओ, पानी पियो, सदा जियो। पानी पियो सदा जियो। चलेगा, पानी जो पिएगा तो वो जीता ही रहेगा जाहिर है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी, who else will read this poem for me? Who else will read this poem for me? फैजान अहमद साहब। जी फैजान साहब। अदा आओ भली आओ जी आओ, मानी खाओ पानी पियो सदा जियो। ओके, ट्रांसलेशन सर। भाई आओ खुशामदीद आओ, खुशामदीद आओ, खाना खाओ पानी पियो हमेशा जियो। हमेशा जीते रहो। राइट, थैंक यू। Who else will read this poem? Who is going to read this poem? Who is going to read this poem? बस 3 लोगों ने जो है वो मोहम्मद शर्जील साहब। मोहम्मद शर्जील साहब। सर जी सर। जी। अदा आ भली आ जियो आ, मानी खा पानी पी सदा जी। ओके, थैंक यू। उसका ट्रांसलेशन क्या है? मतलब भाई आओ खुशामदीद हमेशा जियो, खाना खाओ पानी पियो और हमेशा जियो। हमेशा जियो, खाना खाओ फिर हमेशा जियो, फिर पानी पियो फिर हमेशा जियो। दोबारा से आए, पहली लाइन से आए सर। पहली लाइन से आए सर। इंस्ट्रक्शंस ले लें आसिफ इकबाल साहब से, फिर मुझे बताइए। चलें जनाब। रबिया साहबा, रीड इट। यस सर। अदा आ भली आ जी आ, मानी खा पानी पी सदा जी। भाई आओ खुशामदीद आओ, खुशामदीद आओ, खाना खाओ पानी खा लो। सही है, पानी खा लो पियो, खा लो खा लो, कोई मसला नहीं। पानी खा लो, रोटी पी लो। खाना खाओ जी। पानी पियो सदा जियो। सदा जियो। अच्छा, आप देख के पढ़ रही हैं या आपको असबर है, याद है? सर याद है। गुड, वेरी गुड। शादी सराज साहबा। जी सर। आप अगर आपको अपने बच्चे इजाजत दें तो आप पढ़ लें। जी जी सर, अभी गई हूँ। जी। अदा भलिया जिया, मानी खा पानी पी सदा जी। भाई आओ खुशामदीद आओ, खुशामदीद आओ, खाना खाओ पानी पियो सदा जीते रहो। खाना खिलाने में इतनी रिलक्टेंसी, सोच के आपने कहा, पहले पूछा खाना पका नहीं पका, फिर आपने कहा खाना खाओ। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आयशा खान साहबा। आयशा खान साहबा। जी सर। अदा भलिया जिया, मानी खा पानी पी सदा जी। वेरी गुड फॉर द रवानी, वेरी गुड फॉर द रवानी। प्लीज रीड इट अगेन, रीड इट। अदा भलिया जिया, मानी खा पानी पी सदा जी। जलील साहब, जिस दिन आप ऐसे पढ़ेंगे ना, मैं आपको इनाम दूंगा। इस तरह से रवानी से पढ़ेंगे, मैं आपको इनाम दूंगा। बिल्कुल इस तरह, बगैर किसी के ऐसे पढ़ेंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। शाबाश आयशा खान साहब। चैलेंज एक्सेप्टेड सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सर ये हो जाएगा। I'll send you my book, sir. I'll send you my book as your prize. Okay. Welcome. आयशा खान साहब, इसका जो है वो ट्रांसलेशन बताइए। जी। भाई आओ खुशामदीद आओ, खुशामदीद आओ, खाना खाओ पानी पियो, खाना खाओ पानी पियो सदा जियो। इस रवानी पर मैं तो शाबाश कह रहा हूँ, लेकिन आपके भाई ये ना कहें कि ये जल्दी जल्दी जान छुड़ा के मुझे डरखाना चाहती है कि भाई निकलो बस, खाना खाओ पानी पियो बस। ठीक है, जीते रहो जीते रहो जीते रहो, चले जाओ। थैंक यू वेरी मच आयशा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इमरान ज़करिया साहब, आप पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें ए नहीं आए कहीं भी। रवानी से पढ़िए। मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब। ज़करिया साहब। जी सर। अदाओ भली आओ जी आओ, मानी खाओ पानी पी आओ नहीं कहें सर, सदा। आओ नहीं कहें। अदा आ भली आ जी आ, आओ नहीं कहें।
अच्छा ठीक सर। अदा आ भली आ जी आ मानी खा पानी पी सदा जी। ट्रांसलेशन। भाई आओ, खुश आमदेद आओ, खुश आमदेद आओ, रोटी खाओ, सिर्फ रोटी, पानी पियो सालन नहीं है आपके और पास? सदा जियो। सालन नहीं है क्या? सालन नहीं बना के सिर्फ रोटी खिला जी रहे हैं? सालन नहीं बना? सर वो बना है, लेकिन उसका क्या होगा, उसका क्या, खाना खाओ, उसको खाना क्या बोलेंगे, खाना सालन? खाना खाना खाओ। खाने में सब कुछ आ गया, उसमें आपका सैलेड भी आ गया, आपके चावल भी आ गया। खाना खाओ मीन्स हैव मील्स। तो उसमें खाना हो, रोटी हो, ब्रेड हो, जो भी हो। खाना का मतलब है जनरली आप ऑफर कर रहे हैं, लंच या डिनर ऑफर कर रहे हैं, राइट? खाना खाओ। रोटी का मतलब है पर्टिकुलरली यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेड, ठीक है? तो रोटी खाओ नहीं, खाना खाओ। आप कहें खाना खाओ, खाना खाओ सदा जियो, जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बिफोर आई साइन ऑफ, लेट मी रिमाइंड यू रिगार्डिंग 21st of February। 21st of February जो है वो पूरी दुनिया में मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा दो बातें। एक तो ये कि यूनेस्को जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा है कि जो एजुकेशन पर और साइंस पर काम करता है। और जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस के दफातर पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान समेत। तो यहाँ पर भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में यूनेस्को का हेड ऑफिस है। तो यूनेस्को जो है वो मादरी ज़बानों की दहाई मना रहा है, पूरा अशरा मना रहा है, पूरे दहाकों पे मला है, which has started being celebrated from 2022 to 2032। 2022 खां 2032 ताईं पूरो ॾहाको पे मल्हाए मादरी ज़ुबाननि जो। और उसमें पूरी दुनिया के ऐसे इदारे जो मादरी ज़ुबानों पर काम करते हैं, उनको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है, मेंबर्स बनाए हैं अपने। और उनको ये असाइन किया है, टास्क दिया है कि आप पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबानों के हवाले से सेलिब्रेशंस करें थ्रू आउट द ईयर। और उसमें पर्टिकुलरली 21 फरवरी इसलिए अहमियत की हामिल है कि 21 फरवरी बज़ाते खुद मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन हुआ करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये आपकी दरसगाह है, आपका अल्मा मेटर है, यानी सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, वो भी मेंबर है यूनेस्को के इस 10 साला सेलिब्रेशन का, राइट? तो आप भी अब वाबस्ता है ना, 1.5 महीने से आप सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी को रोज़ जो है वो 1.5 घंटा देते हैं, 2 घंटे देते हैं। तो आपका ये इदारा जहाँ से आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, आप पहला बैच हैं, तो आपका इदारा भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा है, बीइंग एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ दैट इंडिजीनियस लैंग्वेजेस का। इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, दैट इज द डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। इंडिजीनियस यानी जिस पट्टी पर आप रहते हैं उस पट्टी से ताल्लुक रखने वाली जुबानें। इंडिजीनियस लफ्ज का मतलब है मना उन जिसकी जो पाड़ो उन मिट्टी में हो जाए, जिसकी शाखें उसी मिट्टी में हो, उसको इंडिजीनियस कहा जाता है। मैं अगर कहूँ कि बोनीडो सिंध का इंडिजीनियस साज है, यानी यहीं से जन्म लिया उसने, कहीं और से नहीं आया। जैसे अलगोजा जो है वो अरबस्तान से आया है, यहाँ पर आकर अपना शेप लिया। तो इस तरह से इंडिजीनियस वो चीज़ यहाँ की है। अगर मैं कहूँ कि नील इंडिजीनियस यहाँ का पौधा है, तो ये करेक्ट है कि वो कहीं से और से उसका बीज लाकर यहाँ नहीं बोया गया, वो यहीं से स्टार्ट हुआ और अब पूरी दुनिया में काश्त होता है। अक्को जेको कड़ो हूंदो आहे, वो सिंध जो इंडिजीनियस बूटो आहे, वो सिंध जे निशाननि में जाए कड़ो। तो इंडिजीनियस मीन्स उसी मट्टी से ताल्लुक रखने वाला। तो इंडिजीनियस जुबानों का अशरा मनाया जा रहा है, दहाई मनाई जा रही है। एंड सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी इज एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ दिस सेलिब्रेशन। और हम 2022 से लेकर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे साल की एक्टिविटीज करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं विद दिस, उसको हम भी एंडोर्स करते हैं विद द टैग ऑफ दिस, विद द लोगो ऑफ दिस सेलिब्रेशन। और यूनेस्को भी हमें एक्नॉलेज करता है, एंडोर्स करता है। जब ये एक्टिविटी हो जाती है तो उसकी तस्वीर जो है वो उनके वेबसाइट पर अपलोड होती हैं कि हम उसकी सेलिब्रेशन का हिस्सा हैं। तो जो हम 21 को ये वेबिनार कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ वेबिनार, हालांकि वेबिनार के तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ वेबिनार, तो वो भी उसी सेलिब्रेशन का हिस्सा होगा। यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट डिकेड सेलिब्रेशन ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। करना कुछ नहीं है, 3 मिनट आपने बोलना है अपनी मादरी ज़ुबान के हवाले से, या अपनी मादरी ज़ुबान के हवाले से, या ओवरऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ मादरी ज़ुबान जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रही है। पहले उसको माना गया, एंडोर्स किया गया, अब सेलिब्रेट हो रही है। और हर ज़ुबान वाले कह रहे हैं कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो होना चाहिए मदर टंग। चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें,
आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, अपनी मादरी जुबान में बच्चे को पढ़ाएं तो उसको ज्यादा समझ में आएगी बात, बजाय इसके कि दूसरी जुबानों में आप उसको, जो इन्फ्लुएंस जबानें हैं जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये इन्फ्लुएंस, इटालियन है, ये इन्फ्लुएंस जबानें, बड़ी जबानें, जबानों के दादा हैं ये। तो आप अपनी जुबान में, और ये फर्क तब खत्म होगा जब हम फख्र महसूस करें, जब हम फख्र महसूस करें पंहिंजी जुबान में ॻाल्हाइण में। तो आपने देखा कि आप, हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादातर उर्दू होता है, ठीक है, इंग्लिश भी होता है लेकिन ज्यादातर उर्दू होता है, इसलिए कि हमें अपनी जुबानें बोलने में फख्र है। तो आप अपनी मादरी जुबान के हवाले से 3 मिनट बात करेंगे। 3 मिनट इज द फाइनल टाइम। 3 मिनट पर मैं आपको वार्न करूंगा और फिर अगले 10 से 15 सेकंड में आपने अपनी स्पीच खत्म कर देनी है। एक्सटेम्पोर बोलें तो नोट्स बना लें, अगर आप समझते हैं कि एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकते तो आप लिख लें, राइट, और लिख के उसको प्रैक्टिस कर लें कि ये 3 मिनट में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा लगेगा। आप अपनी मादरी जुबान जो भी है, आपकी पंजाबी है, सराइकी है, उर्दू है, हिंदको है, पोटोहारी है, जो भी है, बल्ती है, शीना है, सिंधी है, आप उसका कोई अच्छा सा शेर भी जो रिकॉग्नाइज किसी शायर का हो वो पढ़ के सुनाए, उसकी मीनिंग भी सुनाए, या कोई नसरी पीस, कोई नसरी टुकड़ा उसका, जैसे उर्दू में शेर आफाक चीज़ें हैं उसमें से कोई 2-3 लाइनें पढ़ के सुनाए। उर्दू के तर्जुमे की जरूरत नहीं है, हर कोई समझता है कि कम्युनिकेशन की ज़ुबान है, मुल्क की कौमी ज़ुबान है। तो वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस इंडिजिनस मदर टंग का जो दिन है 21 फरवरी को। वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे के बाद 3-3 मिनट के लिए स्क्रीन आपको दी जाएगी, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे और वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, एंड वी विल रिपोर्ट दिस, राइट, हम इसको रिपोर्ट भी करेंगे कि किसने क्या बोला। तो दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ वेबिनार एंड यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार एंड होपफुली दिस विल बी ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल। मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, आपके पास कोई सवाल है? सर एक रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। मैं कल रवाना होऊंगा डेरा इस्माइल खान टू कराची, तो 25 घंटे लग जाएंगे, मैं सफर में हूँगा, यूनिवर्सिटी आना है मैंने। तो ग्रांटेड सर, तो मुझे एक दिन के लिए सर छुट्टी चाहिए, मेहरबानी है। ग्रांटेड ग्रांटेड ग्रांटेड, थैंक यू वेरी मच, ग्रांटेड, थैंक यू सर, शुक्रिया, वेलकम। तो आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, तो कल इंशाल्लाह इसका हम दूसरा मरहला करेंगे, यानी इस हमारी नवी पट्टी का तफसीली हम एक एक हर्फ पर जाएंगे, और पॉसिबल अल्फाज जो आपके जहन में हो वो आप लिख लीजिए, ताकि आपसे जब पूछे जाएं तो वो आप बताएं कि पॉसिबल अल्फाज क्या है, और फिर मंडे को हम इंशाल्लाह लज़ीज़ बेशर तैयार और दुरुस्त के हालात उसकी मश्क करेंगे। और नेक्स्ट वीक से आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम करने वाले हैं। और एक और चीज, प्रीफिक्स और सफिक्स का जिक्र करेंगे। इफ यू डोंट नो व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स, go through the Google, ask the Google that Uncle Google, please tell us, मुतेकड़ी मेहरबानी कर, गूगल कहे मुतेकड़ी मुझ पर एक इनायत करो, मुझे बताओ प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। उर्दू में साबिका और लाहिका उसको कहा जाता है। अगर आपने उर्दू अदब पढ़ा है तो आपको पता होगा साबिका और लाहिका, साबिक़े और लाहिके क्या होते हैं। सिंधी में उनके चइबो आहे अॻियाड़ियूं ऐं पछाड़ियूं। सिंधी में उनजो लफ़्ज़ आहे अॻियाड़ियूं ऐं पछाड़ियूं। उर्दू में साबिक़े और लाहिके, इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। आप अगर किसी का नाम लिखते हैं मिस्टर इरफान अली, तो इसमें मिस्टर जो है वो प्रीफिक्स है, ठीक है। और अगर बहुत सारी ऐसे सरनेम्स होते हैं जिसका पहला हिस्सा, एक हिस्सा पहले होता है नाम के, एक हिस्सा बाद में होता है, जैसे मिर्जा कलीच बेग। अब मिर्जा कलीच बेग, मिर्जा और बेग दोनों जो है वो कौम को जाहिर करते हैं, ये सरनेम है, फैमिली नेम जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन उसका पहला हिस्सा प्रीफिक्स के तौर पर है, मिर्जा इज प्रीफिक्स एंड बेग इज सफिक्स। सैयद उस्मान अली शाह, तो सैयद जो है प्रीफिक्स है, शाह इज सफिक्स। सैयद जो है साबिका है, शाह इज लाहिका, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स देख लीजिएगा, अगले हफ्ते हम उसको पढ़ेंगे। तो सिंधी में कुछ अल्फाज के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस अॻियाड़ियूं ऐं पछाड़ियूं हम आपको बता देंगे कि अगर आपको सफिक्स मालूम है तो आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में है, सिंधी में भी है, मंद, ठीक है। मंद अगर आपने सीख लिया तो अक्लमंद, दौलतमंद, खिरदमंद, सादतमंद, अकीदतमंद, कितने अल्फाज बनते हैं। तो ये सफिक्स हो गया, मंद इज सफिक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सुलक्षणों, सुपरी, सु इज सफिक्स, प्रीफिक्स, सॉरी, सु इज अग्याड़ी, सुपरी, सुठो, ठीक है, सुठो, सुपरी, तो सुठाई। तो इस तरह से बहुत सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं।
मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कमिंग सून में कि आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। मैंने मिसालें दे दी, मिसाल से ज्यादा बात क्लियर होती है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, तो हम उसका भी जिक्र करेंगे अगले हफ्ते। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग इन कमिंग डेज एंड आई होप दैट यू ऑल विल एंजॉय दिस। जब आप लर्निंग को एंजॉय करते हैं तो आप बोरियत के शिकार नहीं होते। थैंक यू सो मच। See you tomorrow 5 PM inshallah Aziz Bashar Tayat और दुरुस्त की हालात। तब तक this is me Yasir Kazi signing off from class number 33 of Sindhi Language Learning course batch 1 by Sindhi Language Authority Government of Sindh। तो दिल नु गत जुदा करम ना है सदाई गट जेना पे देना खैर अल्लाह ने कहबा।